morning when your feet hit the floor, tell yourself today could be the day. Today could be the day that I turn my entire world upside down for the better. Today could be the day everything in my life changes. Today is the day I take all things in my life to another level. It only takes one moment, one decision, one action, and your whole entire life could change forever. You want a better life, a better job, your own company, more money, more happiness, a better, stronger body, a better relationship? You can have it all. If you just decide today that you would no longer settle for average. What if you set a goal today and actually committed to taking action now to improve every area of your life for the next 90 days? Do you think that you can become the greatest version of yourself? You bet your bottom dollar you could. But only with commitment. We're talking about real commitment with real discipline and real hard work. The truth is, it only takes a moment to make that decision. It only takes a moment. The truth is, you can have whatever you want in life if you are committed and consistent day in and day out. But you know how the story goes. What usually happens? Life gets in the way, doesn't it? Friends and family might get in the way, won't they? Maybe not intentionally, but hey, they want you to go out with them, have a little bit of fun, come to the wedding, have a few drinks. I mean, come on, but one day off won't hurt your progress, will it? Well, do you want this or don't you? It is perfectly okay to say no. You can say no, thank you. I'd rather be strong. But what about the other life issues that are getting in your way? You got bills to pay, right? You got things to do around the house. You have relationship problems. It's too hard right now. I'll do it later. Yeah, let me tell you something. That word later almost always turns into another word. Never. Sometimes we tend to ramble on a lot about the haters, the doubters, the naysayers, right? But listen, really, there's no greater obstacle in your way than your own self. That story you made up to yourself about why you can't do this and why you can't do that. Listen to me. The only thing that is keeping you from your dreams is yourself. Nothing else. It only takes one moment to make a decision. One moment to say no. To say never again. Never again will I settle. Never again will I accept anything but first place. One moment to be strong. One moment to separate myself from the rest. You have to change your habits. Listen, if your habit is always to take action right now, then your results will skyrocket. I guarantee it. But if your habit is always tomorrow, then you'll be that guy that is saying tomorrow until there are no more tomorrows left. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Hi everyone. Hope you're doing well. Thank you so much for joining in this evening. Being on time, I was impressed. I was absolutely impressed to see every one of you here dot at 5 p.m. And I promise you, I assure you, मैं आप सबको कसमें खिला देता हूं कि मैं ये आने वाले 90 मिनट आपके जीवन के सबसे आक्रामक 90 मिनट बना के रहूंगा. ये मीटिंग, ये जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, many of you, I don't know what your friends have told you कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं और यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं. I don't really know, but what I know for sure that this presentation is not much about कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं. It is more about कि आप यहाँ से क्या समझ के जाना चाहते हैं. 9 months back, sorry, I'll just introduce myself. My name is Gaurav Agarwal. By qualification, I'm an engineer and an MBA. By profession, I'm the vice president at a leading food organization. And by passion, I'm an entrepreneur and I help other fellow entrepreneurs to get to wherever they want to reach in life. मेरा एकेडमिकली अगर बात करूं तो मैं बीटेक और एमबीए कर चुका हूं. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की तरह सर्व कर रहा हूं और बाय पैशन, अपने जुनून के लिए, अपने शौक के लिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और बहुत सारे ऐसे लोगों को खोजता हूं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं.
अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बहुत बारी लोग अपने ही डिनायल में रहते हैं, वो एक अपने बनाए हुए बबल के अंदर रहते हैं, वो अपने बनाए हुए एक भ्रम के अंदर रहते हैं जिसको वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वो बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में ये चलता रहता है कि पता नहीं सामने वाला मुझे किस तरीके से जज करेगा। लेकिन आज मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की बात सुन नहीं सकता, मैं शायद आपको देख नहीं सकता, मैं आपके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, आप यहाँ पे सो रहे हो इस वाली स्क्रीन को ऑन करके, या आप जागे हुए हो, आपके हाथ में डायरी है या नहीं है, आप इस सेशन को 90 मिनट देखोगे या बीच में छोड़ दोगे, इसमें से कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं ये अश्योर करता हूं, अगर ये सब आपके हाथ में है, इन केस यू आर कंट्रोलिंग योर ओन एक्शंस, देन आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ दीज 90 days, at the end of these 90 minutes, you'll be a changed individual. I have seen that happen n number of times in my career. 16 years back, I started earning. I earned my first 9,000 rupees at the age of 20. I went on to earn about 1 crore rupees before I turned 23. All of this because I was willing to learn, I was willing to change, I was willing to accept. मैं करता हूँ, तेरे को कॉल करता हूँ, और मैं सीखने के लिए तैयार। Because I was willing to learn, there were people who were willing to coach me, and because they were willing to coach me, I could grow. I could grow beyond what I could have ever dreamed of. Today, if I talk about my current status, I have a good household. My parents are healthy. My kids are healthy. I live in a nice house. I have 3 cars. I travel internationally a lot. I eat at the best restaurants. I travel to the best hotels. I do everything that I could have ever dreamt of. But now I dream even bigger. Why should I fly? Why should I not fly business class? Why should I not live in a 5-star when I'm traveling abroad? Why should my family have to settle for only, one dinner in a month? Why not every week? Why don't we live in an even bigger house? Why don't I pursue bigger things for my kids, for my family? मैं बहुत सारी और चीजें अब सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है सपने एक ऐसी चीज है, एक ऐसी किताब है जो कि जिसके हर एक पन्ना हमारे हाथ में, हम जितने मर्जी जोड़ना चाहें हम उतने मर्जी जोड़ते रह सकते हैं। I once again congratulate you and thank you for taking this decision to opt to sit for this presentation on Sunday 5 p.m. All the people who are connected with us on Zoom and all the people who are connected with us through YouTube. आज सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही दोस्त, आज उस इंफॉर्मेशन द्वारा करी गई ट्रांसफॉर्मेशन का सबूत भी इसी प्रेजेंटेशन के एंड में आपको मिलने वाला है। So make sure you are glued to your screens for the next 90 minutes as I take you through this adventure journey. If your dreams don't scare you, they're not big enough. This is something that I was told when I was 20. I did not understand it completely. मेरे को ठीक से समझ में भी नहीं आया कि जब मेरे को किसी इंसान ने ये कहा, अगर तेरे को तेरे सपनों से डर नहीं लग रहा तो तेरे सपने बड़े नहीं। उसने मुझे समझाया कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। और ये कौन से सपने हैं, इनकी परिभाषा भी नहीं थी। At that time, you can relate to me. I was a student. मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी जॉब कब लगनी है। बस ये पता था कि कॉलेज खत्म होता है उसके बाद जॉब लगती होती है। मुझे ये नहीं पता था कि कितनी सैलरी आती होती है। What should I expect? How should I plan my progression? I knew nothing. And neither did I did that homework. मेरे को जो मेरे सीनियर्स ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने बताया मैंने मान लिया, वही सच था और वही होने वाला। मेरे सपने थे ही नहीं। इसलिए जब उसने मुझे बोला तेरे सपने तुझे डराते नहीं, तो वो सपने छोटे हैं, तो मैं उसको कैसे बताऊं कि डराएंगे तो तब जब होंगे। लेकिन उस दिन के बाद से सपने लिखने शुरू करे। I started writing down whatever I wanted to achieve. However, it sounded funny. My friends made fun of it. मैंने बोला कि मैं कॉलेज खत्म करने से पहले अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो बड़ा मजाक उड़ा उसके ऊपर। तब कांटे मूवी रिलीज हुई थी, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने गाने गाए कि गुड मॉर्निंग करके चल दी हैं यारों को फंसाने, जाने क्या होगा हमारे, क्या फर्क पड़ता है। कॉलेज खत्म होने से पहले I had bought myself a Hyundai Accent CRDI worth 8.5 lakh rupees. I did not need to make fun of them. The cosmos was doing that for me. बट अब के अगर सपने छोटे हैं तो दोस्तों सपनों को बड़ा करिए। मेरे को आज डर लगता है। My son is 6 years old. 12 years later he's going to be he's going to move out to college. What if he says कि मेरे को पापा यूएस से में पढ़ाई करनी है? Why should I be that papa who says कि I don't have the money? I have 12 years to prepare for it and I'm scared. Some years down the line he might he will definitely get married. Why should I be that father who says कि छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं? क्यों कर लें छोटा सा? I'm scared. मेरे को अभी से प्लानिंग करनी है। My parents are not getting younger. They might need health care. Why should I get into a crisis at that time? के लोगों से उधार उठाता फिरूं मैं, क्योंकि मेरे को अपने पापा का इलाज कराना। मेरे पास आज मेरे हाथ पांव नाक मुंह बराबर चल रहे हैं, तो मैं आज क्यों ना कोई तैयारी करूं? तो मुझे डर लगता है।
मेरे को डर लगता है कि अगर मैं किसी बहुत बड़े माइलस्टोन पे नहीं पहुंच पाया अपनी लाइफ के अंदर, तो मेरे बच्चे मेरे को शायद याद भी नहीं करेंगे। मेरे को डर लगता है उस वाली बात से। I would feel that till the time I'm existent, I'm on your screen, I'm in front of you, you remember me, you talk about me, you thank me, you help, you say that I help you a lot, and मैं आपको mentor करता हूँ, आप मेरे को follow करते हो, things like that, and I feel very peace. But it is only till the time I'm in front of you in the screen. I want to create something that is such a big phenomena that even when I'm gone, even 20 years, 50 years later, you remember me. सर एक इंडिविजुअल होता था गौरव अग्रवाल नाम का, जो बहुत कमाल था। मुझे डर लगता है अगर लोगों ने मुझे याद नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपको डर लगता है तो दोस्त आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, जो सवाल मैंने अपने आप से भी किया 9 months back when I was given the presentation which I'm sharing with you right now। जब मेरे को ये वाला आइडिया प्रेजेंट किया गया, उससे पहले मैंने भी बहुत दुनिया देखी हुई थी, उससे पहले मैंने भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देखी हुई थी, उससे पहले मैं भी अति ज्ञानी था। ओहो, ये सारी चीजें तो हम कर करके छोड़ चुके। लेकिन 9 months पहले जब मुझसे ये सवाल पूछा गया, आई आस्क्ड माय सेल्फ दिस क्वेश्चन कि आज की स्थिति के अंदर मैं क्या ऐड करना चाहता हूं। मैं एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, दैट आई शुड नॉट वरी अबाउट द मनी। मैं अपना एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, मैं अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहता हूं, मैं अपनी पर्सनालिटी में और बेटर डेवलपमेंट चाहता हूं, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, मैं नए लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं जल्दी रिटायरमेंट प्लान करना चाहता हूं, क्योंकि बुढ़ा होकर रिटायर करने का मेरे को कोई शौक नहीं है। जल्दी रिटायर करूंगा और मौज करूंगा। लीविंग अ लेगेसी इज समथिंग दैट इज देयर ऑन माय विश लिस्ट एंड इंप्रूविंग माय लाइफस्टाइल एंड सोशल स्टेटस। मैंने ये सारी चीजें पढ़ी एंड आई कुड इजीली टिक मार्क एवरी सिंगल वन ऑफ देम। अगर आपको इनमें से कुछ भी इफेक्ट करता है, आपको इनमें से कुछ भी ऐसा लगता है जो आपके लिए जरूरी है, तो सवाल कीजिए जो आप करंटली कर रहे हैं क्या उससे यहाँ का रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर हाँ, तो ऑल द बेस्ट, और आप इस प्रेजेंटेशन को अभी के अभी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। और अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोलता हूं कि इस टीम के अंदर शामिल होइए, जिसमें हम सब इकट्ठे मिलके एक दूसरे के सपने पूरे करने की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट वेयर यू आर आल्सो हैप्पी, वेयर आई एम आल्सो हैप्पी। For that, what we need to do is we need to step out of our comfort zone. Whatever we are doing, in case we are a student, तो मैं सुबह उठता हूँ, अपने कॉलेज जाता हूँ या अपनी क्लासेस जूम पे अटेंड करता हूँ, जो मर्जी करता हूँ, अपने नोट्स बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ एग्जाम वाले टाइम पे। But that, although it seems stressful to me, but it is my comfort zone because this is something that I need to do. अगर कोई जॉब कर रहा है, वो सुबह सुबह उठता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, वो अपने ऑफिस के लिए निकल के जाता है, अपने बॉस की जीओजूरी करता है, उसके सारे काम करके देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। वो मुश्किल है, लेकिन उसकी कंफर्ट जोन है, क्योंकि उसको हर रोज करना है। अगर किसी का अपना बिजनेस है और वो अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेस लेता है, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है, कितने लोगों से हाथ मिलाता है, कितने लोगों को रिक्वेस्ट करता है, कहां कहां से लोन उठाता है, ये भी उसका कंफर्ट जोन है, क्योंकि उसने ये चुन लिया अपने लिए पाथ और वो हर रोज सुबह उठ के यही काम करता है। अगर कोई हाउसवाइफ है जो कि अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, घर को साफ रखती है, तो ये भी उनकी कंफर्ट जोन है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट दे हैव अडॉप्टेड टू। अब रही बात कि अगर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूं जो इस वाले कॉस्मोस के अंदर, इस वाले सिस्टम के अंदर मेरे को नहीं मिल पा रहा, मेरे को ऐसा कुछ भी चाहिए जो मेरे को लग रहा है मेरे करंट लाइफस्टाइल से अचीव नहीं हो पा रहा, तो उसका रास्ता कहां पे है दोस्त, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। इस छोटे वाले गोले से निकल के बड़े गोले के अंदर आइए। दैट इज वेयर द मैजिक इज हैपनिंग। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन केस यू हैव टू गेन समथिंग एक्स्ट्रा। आई हैव माय पर्सनल लाइफ, आई हैव माय प्रोफेशनल लाइफ, एंड आई हैव अ चॉइस, and I made that choice that I'll do something extra because I want lots extra for myself. In case my thoughts resonate with you, I welcome you to be a part of my team. Cash flow quadrant. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रैंट्स की बात ना करूं, जो मैं अंदर से इतना एक्साइटेड हूं और लोगों को चीख चीख के अपनी बातें बोलता रहता हूं, लेट्स गो बाय लॉजिक। ये बात रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर मैंने पढ़ी थी। द एंटायर वर्कफोर्स इन द एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन द 4 quadrants। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉइज वो जो किसी के नीचे काम करते हैं, किसी कंपनी में वर्क करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस रन करते हैं, जिसे वो सिंगुलरली या मे बी 2, 3, 5, 15 लोग मिलके रन करते हैं। बिग बिजनेस ओनर्स आर द पीपल हु हैव बिग एंटरप्राइजेस, हु हैव द मनी and who have the power to hire the best brains in the country to work for them. They could be holidaying, वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं, यूएसए में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका बड़ा कारोबार बड़े टैलेंटेड लोग उनके लिए चलाते रहते हैं, क्योंकि वो उन्हें पैसे दे देते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं उसके बाद, जिनके पास ये पैसा और सूझबूझ होती है कि किस पैसे को कहां पे लगाया जाए, और वो बस अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 95% लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास सपने हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनती हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी मम्मियां कहती हैं कि बेटा अगर तू अपना काम ईमानदारी से करेगा तो तू अपना नाम रोशन कर पाएगा। ये सारे इस तरफ में आते हैं। 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हियर हु अर्न ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम। राइट हैंड साइड में आते हैं
5% लोग जो कि एंजॉय करने हैं 95% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ। अगर मुझे चॉइस ही नहीं मिली तो फिर मैं चॉइस करूंगा क्या? लेकिन अगर मुझसे कोई सवाल करे कि कौन सी तरफ में अपने आप को देखना चाहते हो, तो बगैर पलक झपके मैं ये वाली बात बोल सकता हूं कि आई वुड वांट टू मूव टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। मेरे को राइट हैंड साइड पे जाना है, मेरे को वो वाला लाइफस्टाइल चाहिए जो इनके पास है, मेरे को उतना बड़ा नाम करना है जितना बड़ा टाटा और बिरला का है। इम्पॉसिबल है, लेकिन कभी तो उनके लिए भी था। अगर कर लिया तो रास्ता होगा ना, और मुझे रास्ता चुनना है। फिर आता है मेरे दिमाग में ख्याल कि कर क्या सकते हैं, आइए एक और स्टार्टअप शुरू करें। ये एक दिमाग के अंदर बात आती है कि चलो अपना कारोबार करेंगे। जितने भी बड़े लोग हैं जिनका भी बहुत नाम है ना, उन्होंने अपना बिजनेस किया है। लेट मी स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप। देयर आर hundreds and thousands of startups being started every single day. Why? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज से जो 84 लाख लोग बाहर निकल रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है क्योंकि उसी तरह से उन्होंने 4 साल बिताए थे। इसलिए हर एक इंसान अपना स्टार्टअप खोलता है। पर जब स्टार्टअप खोलता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोच पाते हैं कि क्या आइडिया, हाउ इज इट यूनिक, how can it work through all phases of life, कि अच्छा टाइम आया तब भी चले, बुरा टाइम आया तब भी मेरे को सपोर्ट करे। आइडिया क्या है? दूसरी चीज, अगर आपके पास आइडिया है तो उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी लगाने को तैयार हो, क्योंकि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल लग सकते हैं लोगों को आपके आइडिया से कन्विंस करने में। अगर आप अपने आइडिया से कन्विंस हो तो कब तक अपने आइडिया के ऊपर बैठ कर सकते हो। लेकिन अगर लंबे समय इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो आपके पास आता है रिस्क, कि अगर पैसे डूब गए तो पता चला मेरे पास जो है वो भी खत्म हो गया और नया तो कुछ आया ही नहीं। सेकंड आता है बिल्डिंग अ स्टार्टअप। आपने चलो ये सारी चीजें कर ली, आपने एक इन्वेस्टमेंट भी इकट्ठी कर ली, लोन ले लिया या पापा से बोरो कर लिया या अपने पास इकट्ठा था, और एक आइडिया भी आपके पास है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, वेयर डू यू गेट गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। हर एक इंसान जिसको सैलरी दी जाती है, अनफॉर्चुनेटली वो हर एक इंसान काम नहीं करता, तो आप अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाओगे? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आपका आइडिया बहुत यूनिक है, लेकिन लोगों तक पहुंचेगा कैसे, कौन पहुंचाएगा? एंड व्हाट इज द बिजनेस एक्सपेंशन प्लान? कल इस वाले बिजनेस को आपको 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना करना है, तो उसके लिए प्लान क्या है? So from my experience, because I've been funding many startups, I've found out that many people believe कि मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, 1 साल की बात है, कोई ना कोई आ जाएगा और वो मेरे को फंडिंग दे देगा और मैं फंडिंग करके अपने वाले इस वाले बिजनेस को $multi-billion बना दूंगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पर इस कारण से मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, क्योंकि ओयो भी हमारे देश से निकला, फ्लिपकार्ट भी हमारे देश से निकला, पेटीएम भी हमारे यहां से ही निकला, तो किसी का स्टार्टअप था ना। लेकिन कितने ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं और कितने हैं जितने अनसक्सेसफुल हैं? अगेन, आई डू नॉट वांट टू डिमिनिश एनी आइडियाज, पर मैं अपने आप के बारे में जानता हूं। मैं ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड इंसान नहीं हूं जो कि ये सारी सूझबूझ रख सके जिस तरह से पेटीएम के ओनर के पास। बट हाँ, फिर भी मेरे ड्रीम्स हैं, फिर भी मेरे एम्बिशंस हैं, फिर भी देयर आर थिंग्स दैट आई वुड वांट टू डू, आई वुड वांट टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया ऐसा आया जिसको मैं आज आपके साथ बहुत क्विकली इन द नेक्स्ट 20 मिनट साझा करना जा रहा हूं। ठीक है ना? सबसे पहले बात करते हैं इस आइडिया की। Why did it appeal to me? Why did I like this idea in the first place? कि 9 months पहले I could decide कि even though I have my family to take care of, even though there is a professional commitments that I'm tied out with, फिर भी मैं अपना समय डिवोट करूंगा इस वाले काम को बिल्ड करने के लिए। तो ये आइडिया रिवॉल्व करता है FMCG के अराउंड। ये एक ऐसी कैटेगरी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको रिसेशन आ जाए तब भी लोगों ने खरीदना है, अगर अच्छा टाइम चलेगा तब भी लोगों ने खरीदना है, कोई बहुत अमीर है तब भी खरीद रहा है, कोई बहुत गरीब है तो भी खरीद रहा है, किसी का बच्चा पैदा हुआ तो भी खरीदेगा, किसी का कोई मर गया तब भी खरीदेगा। हर एक समय पे हर एक इंसान को ये परचेजिंग करनी है, और अगर वो मुझसे नहीं करेगा तो वो किसी ना किसी दुकान से करेगा ही करेगा। दिस इज समथिंग, दिस इज वन इंडस्ट्री विच कैन नॉट डाई। रिसेशन के अंदर, मतलब सॉरी, ये पिछले 3 महीने के लॉकडाउन के अंदर भी ये अकेली इंडस्ट्री ऐसी है जो एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर गिनी गई। और मेरे को मतलब आर्मी मैन वाली फीलिंग आ रही थी कि एक तो आर्मी काम कर रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और हम FMCG सेक्टर वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उतने ही बड़े हैं भारत को बनाने वाले। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, these basic necessities cannot be avoided. Why not get a pie out of the existent cake? अभी why not get a piece out of the existent pie? इतनी बड़ी पाई बनी हुई है, जब सब लोगों ने खरीदना है तो क्यों ना मैं अपनी मार्केट की तरफ लेके जाऊं लोगों को। अब मेरी जो शॉप है उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होना जरूरी है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देयर इज शॉप ए, जहां पे मैं पिछले 37 ईयर्स से मेरी फैमिली सब लोग शॉपिंग करते आ रहे हैं, और एक है शॉप बी जो मेरा आइडिया है।
शॉप ए के अंदर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर परचेज्ड हैव एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट देम। एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो हर एक जगह पे, बिल बोर्ड पे, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह मीडिया चैनल्स पे आपको मिल जाएगी। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज एंडोर्स करनी है, तो देयर इज ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी, अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्स है और वो वाई पे ही सेल करना है और बीच में से करोड़ों खान साहब ले गए यहाँ पे आके, तो there is a possibility that the quality is compromised. Shop B has no advertisement, so at least the fund is available to invest in quality. अब क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, दोनों ही जगहों पे आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। Shop A, there is no paid, there are paid memberships. आप एक limited minimum cart size order करो या आप एक paid membership लो, then you get special privileges at these stores. शॉप बी जो मेरी वाली दुकान है, वहां पे आप आज अभी इसी सेकंड अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने दोस्त को शेयर करिए और आपको हाथों हाथ आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, where you have a free lifetime membership and all the benefits that the organization offers are available to you there and then. शॉप ए के अंदर अनट्रेन्ड सेलर्स हैं, यू वांट टू नो अबाउट प्रोडक्ट, यू कैन नॉट नो दैट, व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इट। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो छोड़ के जाइए। शॉप बी के अंदर देयर इज 100% प्रोडक्ट नॉलेज, ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, उसकी क्या क्या खासियत है, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या साइड एडवांटेज है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। आगे नॉलेज कम्स टू द सीकर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप चाहे यूट्यूब पे इनके वीडियोस देख लीजिए, चाहे आप कंपनी की ट्रेनिंग्स अटेंड कर लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टोर पे जाके सवाल कर लीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब उनके पास अवेलेबल है। शॉप ए, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई डू नॉट गेट अ जीएसटी बिल, मेरे को कोई एश्योरेंस नहीं मिलती। इन केस आई ओपन अप अ पैक, आई कैन नॉट गो एंड रिटर्न इट। अगर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस नहीं दे सकता, क्योंकि वो बोले पैकेट खुला हुआ है। शॉप बी के अंदर जीएसटी बिल मिलता है और मेरे को एश्योरेंस मिलती है। आपने अगर प्रोडक्ट यूज भी कर लिया और 20% तक इस्तेमाल भी कर लिया, ओपन भी कर लिया, आप वापस लाइए। इन केस यू नॉट सेटिस्फाइड, फिल अप अ रिटर्न फॉर्म एंड यू गेट योर मनी बैक। आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हाटसोएवर। शॉप ए में मेरे को प्रोडक्ट्स एमआरपी पे मिलते हैं। शॉप बी के अंदर मेरे को 10 से 20% डिस्काउंट बिना पूछे मिलता है। शॉप ए पे मेरे को कोई लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिलता। इतने सालों से मेरी फैमिली वहां पे शॉपिंग कर रही है, बट नेवर हैव दिस कि अच्छा इस महीने आप फ्री में ले जाओ। शॉप बी के अंदर लॉयल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। आई परचेज वर्थ 3000 I hope everybody is on mute. Yeah. So I purchase over 3000, I get 300 rupees का products free। 5 to 11% कैशबैक भी मुझे मिल जाता है, ओवर एंड अबव जो 10 to 20% डिस्काउंट मुझे मिला था। इसके अलावा इफ आई शॉप, अगर मैं अपने घर की प्रोडक्ट परचेज की बात करूं जो एफएमसीजी में आती है, इट गोज अप टू अबाउट 5000-6000 रुपीज एवरी मंथ। बट अगर मैं 3000 भी मान के चलता हूँ हर महीने, अगर मैं 3000 की शॉपिंग करता हूँ फॉर 4 months, जो कि अदरवाइज भी मैं किसी दुकान से कर रहा हूँ, इन द 5th month आई गेट 2500 रुपीज वाउचर विच इज फ्री, विच मीन्स कि उस महीने मेरे को 3000 का सामान सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा, जो मेरे को कहीं भी नहीं मिला इससे पहले। इसके अलावा देयर आर स्कीम्स एंड ऑफर्स एंड यू कैन मल्टीप्लाई द बेनिफिट्स दैट यू गेट आउट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम शॉप बी। शॉप ए के अंदर कोई रॉयल्टी बोनस नहीं है। हाउएवर मेनी कस्टमर्स आई फॉरवर्ड टू मिस्टर ए, शॉप ए पे मैं कितने भी सारे कस्टमर्स भेज दूं, मेरे पास कोई थैंक यू का कॉल भी नहीं आएगा शॉप बी के अंदर। लेकिन मैं अगर किसी को रेफर करता हूं तो एक सोचे समझे सुलझे tried and tested business model के तहत I am able to earn as much of money that I can aspire to earn. अब simple सा question, shop A where you're buying your products on a regular basis and not getting any special preference, and shop B where you can save 50 to 60%. अभी we've not even gotten to the business, we've not even gotten to the opportunity that exists. अभी मैं उसकी बात ही नहीं करता। अगर फिर भी 50 से 60% का छूट मिल जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को शर्मा के इसके बारे में बताना चाहिए। जितने जोश से मैं कन्वे करता हूं उतनी जोश से आपको भी ये कन्वे करना चाहिए। In case there's an advantage you can offer to your family and friends, why not? I do it every single day. How does this happen? Let me explain you the concept of direct selling for the people who believe कि मेरे को तो पता है जी, ये तो मुझे भी पता है। आप मेरा वर्जन सुनिए आज। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है कि एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बनाता है 40 रुपए में, नॉर्मल शॉपिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरर 40 रुपए में सामान बनाता है, he sends it to a CNF agent, then to a stockist, then to a distributor, then to a retailer. There is a massive spend which is happening on advertisements and I get my product at 100 rupees. Now 100 पे खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but in case I'm going through an economic crunch, I would want to save money, but I cannot. Why? Because there are so many middlemen who need to feed on that. अगर उन सब लोगों का अपना अपना हिस्सा निकालना है तो फिर मेरे 100 रुपए को कम करने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। लेकिन अब आता है डायरेक्ट सेलिंग, वेयर देयर आर नो मिडलमैन, नो सीएनएफ, नो स्टॉकिस्ट, नो डिस्ट्रीब्यूटर, नो रिटेलर एंड नो एडवर्टाइजमेंट्स। द मैन्युफैक्चरर थ्रू हिज ओन नेटवर्क
sends the products directly to a consumer, which means एक 40 रुपीज का प्रोडक्ट आज भी मुझे 100 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन बीच में जो ये 60 रुपीज है उसको एक्सेस करने की अनुमति मेरे पास है। उसी में से मुझे 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है, उसी में से मुझे कैशबैक मिलता है, उसी में से मुझे स्कीम्स एंड ऑफर्स मिलते हैं, और उसी में से मुझे एक सॉलिड बिजनेस मॉडल मिलता है। बिकॉज द मनी एग्जिस्ट्स, द मनी कैन बी अर्न। वो कहते हैं ना कि मनी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर। तो अगर होगी उस पॉकेट में तभी तो इस पॉकेट में आ पाएगी, और यहाँ पे होती है। एंड आज मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है ऑन दिस ऑस्पिशियस डे टुडे दैट वी हैव कनेक्टेड। I am here to share with you not just a direct selling idea, but to share with you the best direct selling idea that exists in this country. If we are vocal for local, if we talk about things that are made in India, let me introduce you to the best organization working in the direct selling sector and which is totally made in India. Ladies and gentlemen, let me introduce Vestige. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसका नाम सुना हुआ है, ये वेस्टीज है। नहीं सर, ये वो वेस्टीज नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी वाली वेस्टीज सुनी होती तो आपका रिएक्शन ओ वाला हो ही नहीं सकता। और आप में से जिन लोगों ने नहीं सुन रखी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं दोस्त। 9 महीने से मेरे को इतनी स्फूर्ति अपने अंदर नजर आ रही है। आई एम सीइंग सो मच ऑफ एक्टिविटी, सो मच ऑफ पैशन दैट इज रेजोनेटिंग आउट ऑफ व्हाटएवर आई डू, only because I think I have plugged myself to the right system. सही लोग हैं, सही प्रोडक्ट्स हैं, सही ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरा कैलिबर है कि मैं इसको कितना बड़ा बना सकता हूं। आइए जानते हैं थोड़ा सा वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज has 3 founders, Mr. Gautam Bali as the managing director, along with Mr. Kamalveer and Mr. Deepak Sood. These gentlemen have 25 years of experience in the direct selling industry. इन्होंने 25 साल तक विश्व की बड़ी बड़ी direct selling organizations के साथ टॉप पोजीशंस हासिल करी हैं। उस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके आए 16 साल पहले डिसाइड किया कि एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो कि भारत से शुरू होगी और पूरे विश्व के ऊपर राज करेगी, एंड दैट इज वेयर वेस्टीज केम अबाउट। The company started in 2004 with a mere turnover of 5 crore rupees, a few products and 2 offices, one in Delhi and one in Bangalore. Lekin let me tell you, I feel absolutely impressed when I tell people about Vestige, because this is perhaps the only organization, शायद ये अकेली ऐसी संस्था है जिसके बारे में मैं ये proudly कह सकता हूं, जिसने year on year हर साल लगातार 80% से ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल किया है। 2,350 crores was the turnover that we closed in March लास्ट ईयर, जब ये अभी मार्च 2020 अभी खत्म हुआ है, उसमें 2,350 करोड़ रुपीस विच हैज मेड दिस ऑर्गेनाइजेशन द बिगेस्ट टर्नओवर क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। अब टर्नओवर सिर्फ इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि कंपनी तो बहुत बातें करती है, टर्नओवर इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके कस्टमर्स उसके साथ खुश हैं, क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके साथ लॉयल है, क्योंकि उसके साथ जो ये अपॉर्चुनिटी है उसके बेनिफिशियरीज बहुत ज्यादा हैं। इतने सारे लोग बेनिफिट कर पा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और ऊंचाइयां छूती जा रही है। कंपनी टुडे हैज 55 branch offices almost in every state. You can go there, show the product, show the plan, get trainings. आप product की purchasing वहां पे कर सकते हो। There is a physical human contact. आप वहां पे जाइए, आप जो जानना चाहते हैं, जिस language में जानना चाहते हैं, it is available for you. 300 plus world-class products the organization has, which include health supplements, home care, personal care, oral care, health food, agricultural products, Ayurvedic products, men's grooming range, एयर प्यूरिफायर्स एंड वाटर प्यूरिफायर्स। इट इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। हम जितना मर्जी लड़ते रहे, हम न्यूज़पेपर ओ हो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए कुछ करा जा सकता है, तो वो भी यहाँ पे है। प्रीमियम केयर, स्किन केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, एंड देयर आर न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच कम इन एवरी वीक। It is a market leader in healthcare. It has its own very varied personal care range. एंड घर पे ब्रेकफास्ट के साथ में यूज होने वाला सामान हो, कुकिंग की चीजें हो, क्लीनिंग की चीजें हो, या प्रीमियम कॉस्मेटिक्स हो, आप शौकीन हैं या आप रेगुलर परचेजर हैं, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ वेस्टीज में जरूर मिलेगा। Company today has about 4,500 stores across the country, and I would like to tell you, Spencer's, More, Reliance Fresh, etc. These organizations, which are much mightier, do not have 4,500 stores in the country. I feel proud that I'm sharing you a business idea where you get to own 4,500 stores, which will definitely start working from you from today itself. Vestige is going global. It is not just in the country. It is present in 7 countries today, apart from India, which includes Nepal, Bahrain, UAE, Ghana, Bangladesh,
and by 2025 they aim to be at 50 countries. Now being present in 50 countries does not just mean that you can sponsor people there. The company has an office there, company has an infrastructure there. 7 देशों के अंदर कंपनी के अपने ऑफिस है, अपना स्टाफ है, वो लोग अपनी भाषा के अंदर ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपनी करेंसी के अंदर पैसे दे सकते हैं और इसी वाले बिजनेस को बढ़ाते रह सकते हैं. I feel proud that the organization is so far reached. कंपनी की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है. जिन लोगों को दुकान पे जाने का शौक नहीं, जैसे मैं हूं, मैं अपने सारे के सारे ऑर्डर्स अपने फोन पे प्लेस करता हूं. एवरीथिंग इज डिलीवर्ड टू माय हाउस होल्ड. मेरे को घर पे सारी चीजों की डिलीवरी मिल जाती है. आप जितनी चीजें जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, स्टोर कहाँ पे है, मीटिंग कहाँ पे हो रही है, आपकी टीम में क्या हो रहा है, कितने का चेक बना, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स. द कंपनी इज एब्सोल्युटली फ्यूचर रेडी. Company has 3 manufacturing units. They have their own R&D labs. ये बद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर है and they adhere to the best protocols which are existent across the globe. चाहे हलाल हो, चाहे GMP हो, चाहे ISO सर्टिफिकेशन हो, कंपनी उन सर्टिफिकेशंस के साथ उस आधार पे अपनी इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाती है. I feel proud that I'm associated with an organization जो कहीं से प्रोडक्ट्स लेके उसके ऊपर स्टिकर चिपका के नहीं बेच रही. वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करती है and that is why I feel the organization has absolute trust on what they are selling. The company was rated as the best nutraceutical company of the year in 2017 and पिछले 16 सालों के अंदर अनगिनत अवार्ड से इस ऑर्गेनाइजेशन को नवाजा जाता रहा है. ग्लोबल 100 अवार्ड्स अक्रॉस द ग्लोब जितनी भी कंपनीज फंक्शन कर रही हैं, उनमें से जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, उनको ऑनर किया जाता है विद द ग्लोबल 100 अवार्ड्स. आई फील एब्सोल्युटली प्राउड वंस अगेन to share with you that this organization, which in 2017 was at 93rd rank, in 2018 was at 63rd rank, and in 2019 it became the 30th biggest organization across the globe working in the direct selling industry. 30वीं विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये है. एक और बात पे मेरे को अत्यंत गर्व होता है कि टॉप 100 की लिस्ट के अंदर अकेली भारतीय ऑर्गेनाइजेशन वेस्टीज है. एंड आई वंस अगेन हार्टिली वेलकम यू कि आप इस वेस्टीज के परिवार का हिस्सा बने. आप अपने घर के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं उन सबको यहां से लेने की कोशिश करें और मैं आपको वादा करता हूं कि प्रोडक्ट तो आपको जो फायदा देंगे सो देंगे. ये सोच और ये संगत आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रेरित कर सकती है. अब आते हैं बात इन्वेस्टमेंट पे. आइडिया तो हो गया, आइडिया तो मैंने बता दिया क्या करना है. दुकान बदलनी है. दुकान बदलनी है मतलब कि एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लग इन करना है जहां पे आपकी अपनी 4500 दुकानें हैं, आपके अपने 3 फैक्ट्रीज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, आपके अपने 55 ऑफिसेज हैं अक्रॉस द कंट्री, आपके अपने बिजनेसेस हाउसेज हैं जो कि 7 कंट्रीज के अंदर रन कर रहे हैं. आप अपने दुकानों में कितना बिजनेस करना चाहते हैं इज एंटायरली अप टू यू. इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए. जिस तरह एक चाय की रेडी लगाने वाला इंसान भी कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए अपने बिजनेस पे लगाता है, यहां पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट उसी प्रकार की रहती है. आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए मिलने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सिंपली ये कि अपने घर के यूज की चीजों को बदल दीजिए. जो भी घर पे आज यूज हो रहा है जो कि वेस्टीज बनाती है, आज उसको चेंज करने की बारी आ गई. आई हैव गिवन यू इनफ रीजन. इवन इफ आई से कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोले नहीं नहीं मनी इज नॉट एवरीथिंग. आई टोटली एग्री, आप सही कह रहे हो. आप इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे खत्म कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट्स यहां से लीजिए कि सेविंग हो रही है तो उसमें क्या बुराई है, अगर बच रहा है तो क्यों नहीं. एक आपको इलस्ट्रेशन भी देता हूं, मैंने इस बारी जानबूझ के डाली है. मैंने ये परचेजिंग करी तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं. जो मैंने सामान खरीदा उसकी एमआरपी थी 3968. मैंने उसके लिए पे किए 3302 रुपए. मेरे को सीधा पहले दिन पे बगैर किसी सवाल किए, किसी बिजनेस की उम्मीद रखे बिना कंपनी ने 16.78% का डिस्काउंट दिया. मैंने 5 महीने तक यही परचेज करनी थी क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो मेरे घर में लगती हैं. मैंने 5 महीने तक यही परचेज यहां से करने का निर्णय लिया. मैंने 5 महीने के अंदर टोटल मेरा बजट बन जाता है 16,510. 2500 रुपए का 5वें महीने में मुझे वाउचर मिल गया. आई गॉट अ वाउचर फॉर 2500. मैंने बताया था ना 3000 की शॉपिंग करो लगभग हर महीने. 4 महीने तक करते हो, 5वें महीने में 2500 का वाउचर मिलता है तो 2500 माइनस कर देते हैं. 16,510 में से 14,010 मैंने सिर्फ पे किया, विच मीन्स मेरे को 15.14% की और सेविंग मिल गई. अगर मैं टोटल बात करूं, मैं जी बिजनेस करना ही नहीं चाहता, मम्मी कसम है कि मैं अपने इस लाइफ के अंदर कोई बिजनेस नहीं करूंगा, अगर मैं सिर्फ खरीद ही रहा हूं
तो भी मुझे 31.93% का बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं काम करना शुरू करता हूं तो मेरे को कैशबैक्स भी आते हैं, मेरे को फ्री प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ऑफर और स्कीम भी आती है, नाना किस्म की इनकम्स मेरे लिए खुल जाती हैं। दैट इज एन एडिशनल बोनस। सो आई कैन नॉट गेट as more clearer about what is the advantage of shifting to STs। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट यही है कि जो घर में आ रहा है उसे कम दाम में खरीद लो, अच्छी क्वालिटी का। दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट द ऑर्गेनाइजेशन सीक्स फ्रॉम यू। देन वी कम टू द बिग क्वेश्चन कि अब आइडिया भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी होगी, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट में तो कुछ लग नहीं रहा, तो मेरा रिस्क कोई नहीं है। तो आप आते हैं दूसरे पार्ट पे कि बिजनेस को चलाएं कैसे। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, एक्सपेंशन प्लान क्या होगा। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं दोस्त, अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं और सांस लेते हैं और चलते फिरते हैं और वो अपने मुंह से बात भी करते हैं, अगर ऐसे लोग आपके पास एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनको ये बात कन्वे कर सकते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर सेविंग लाने में क्या प्रॉब्लम है। एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज कर रहा हूं जो कि अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, और अगर आप उस वाले प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करोगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर सेविंग लेके आ सकते हो। मतलब मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स का तो भंडार है। Everybody, every walking individual around me is a prospect. I can talk to anybody and everybody about it. And here I come to how this business works. It works through word of mouth. It works through true recommendation. This recommendation that I give to my friend and family is much better than the recommendation that I get from Salman Khan about a cold drink that will make me fly out of the, from the mountain to the hanging train. मैं को सलमान खान बताते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, छलांग मारिए पहाड़ से और ट्रेन, लटकी हुई ट्रेन पे कूद के आप खड़े हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं विश्वास कर सकता, पर अगर मेरा कोई दोस्त मुझे ये कह सकता है, शायद मैं एक बारी के लिए सोच भी लूं। और वर्ड ऑफ माउथ कितनी विचित्र सी चीज है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम लोगों को बताते हैं। मूवी अच्छी लगेगी तो बताएंगे, रेस्टोरेंट अच्छा लगेगा तो बताएंगे, खाना अच्छा लगेगा तो बताएंगे, कपड़े अच्छे लगेंगे तो बताएंगे, कुछ नहीं अच्छा लगेगा तो भी बताएंगे, पर हम बताएंगे। लोग कहते हैं कि लेडीज के पेट में कुछ नहीं पचता, तो मैं आपको बता दूं, मैं अच्छा खासा सुलझा हुआ मर्द हूं, मेरे भी पेट में कुछ नहीं रुकता। अगर मुझे कुछ अच्छा पता चलता है तो मैं सबको बता दिया करता हूं। तो अगर मैं वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर फोकस करूं कि ये मेरी बचपन से आज तक की आदत है, तो ये मेरी किसी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं स्टूडेंट, मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं, या मैं कहीं पे प्रोफेशनल हूं, क्योंकि मैं बातें करता हूं तो मैं बातें कर सकता हूं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आपके लिए दरवाजा खुलता है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान का। हाथ जोड़ के और कान पकड़ के मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर तो आपका पर्पस ये है चलो जी तुम कह रहे हो तो एक बार ही ट्राई करके देख लेते हैं, तो आप अपने आईडी बनाइए, प्रोडक्ट परचेज करिए, और प्रेजेंटेशन इसके आगे की आपके लिए नहीं। लेकिन ये प्रेजेंटेशन उनके लिए कंटिन्यू करते हूं मैं जिनसे मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि जिनके मन में कोई ना कोई ड्रीम है, जिनके मन में कोई ना कोई उद्देश्य है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती है। ऑब्वियसली 9 तरीके हैं यहाँ पे जिस तरह की आप आमदनी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सारे मैं विस्तार में बता नहीं पाऊंगा, तो मैं ब्रीफली सब कुछ बताता हूं। लेकिन जिस दिन आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं उस दिन कोशिश करिए कि आपका कोई भी सीनियर है जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया वो बैठ के आपको सब कुछ समझाए, क्योंकि जानेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। राइमिंग नहीं हुआ लेकिन सेंस बनती है। सबसे पहली इनकम आती है रिटेल प्रॉफिट्स। रिटेल प्रॉफिट्स मैं इसे इनकम क्यों कहता हूं, क्योंकि जो खर्चा मैं हर महीने, महीने आफ्टर महीने करता जा रहा हूं, जो इन्वेस्टमेंट, अगर आपने आज ये मीटिंग नहीं समझी, आपने अपने दोस्त को बोला मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा आज के बाद से, तो भी आप ये वाली परचेजिंग करते जाओगे, आप ये करोगे ही करोगे, आपकी फैमिली भी करेगी, आपकी फैमिली की फैमिली भी करेगी, सब लोग करेंगे, ये करनी पड़ेगी। अगर उसी के ऊपर सेविंग मिलती है हर महीने, तो फिर मेरे को लगता है वो भी ये करनी है, वो पैसा आप ही के घर में बच के तो आ रहा। तो 10 to 20% saving on all your purchases. Save even more in case you utilize the schemes and offers. You can save even further by ensuring consistency. 100 PV की शॉपिंग अगर आप 4 महीने करते हैं, आप PV में आपको एक्सप्लेन कर दूं, PV is point value. PV होता है point value. Point value is अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं 32 रुपए को 1 पॉइंट वैल्यू दी गई है। मतलब आप 3200 की लगभग परचेज करते हो तो आपके 100 पॉइंट वैल्यू हो जाती है। आप 4 महीने तक 100 पीवी की शॉपिंग करते हो तो आपको 2500 रुपए का 5वें महीने में वाउचर मिल जाता है, एंड यू कैन ऐड टू योर सेविंग्स। आप अपनी सेविंग्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। परफॉर्मेंस बोनस, आप जैसे ही सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, सबसे पहली इनकम जो आपकी शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। बहुत ज्यादा बड़ी इनकम नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं लगी मेरे दोस्त। जब आपने अपने घर के लिए परचेजिंग करी 100 पीवी की, तो आप पहले ब्रैकेट में आ गए, क्योंकि आपकी टीम की सेल्स 100 पीवी हैं।
5% के ब्रैकेट में हो, आपने और लोगों को रेफर करना शुरू किया, औरों को रेकमेंड किया अपना ये वाला आइडिया, हेल्प ली अपने और दोस्तों की जिन्होंने ये वाला सिस्टम कर रखा है कि वो बेटर कन्वे कर सकें। आप जब 600 पीवी अपनी टीम में कर पाते हैं तो आप 8% के ब्रैकेट में आ जाते हैं। आप 2400 पीवी कर पाते हैं तो आप 10% के ब्रैकेट पे आ जाते हैं। ये आपका कैशबैक है जो आपका कैलकुलेट होकर आपके पीवी पॉइंट पे आपको दिया जाना है। ये कैसे होता है, एक डिफरेंशियल मॉडल है, आपके दोस्त समझाएंगे, मैं ब्रीफली लेके जाता हूं। 5500 पीवी जब आप कर पाएंगे तो आप 11% पे आ जाएंगे और आपको मिलती है कंपनी की पहली डेजिग्नेशन विच इज कॉल्ड ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ऐसे बहुत सारे शूरवीर हमारी टीम के अंदर मौजूद हैं जिन्हें 1 महीना भी नहीं लगा और उन्होंने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर पूरा कर लिया। हाँ, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर चाहें, आप कोई बोले मतलब कंपल्शन है 1 महीने में करना, ना बिल्कुल भी नहीं है जी, 10 साल लगा सकते हैं। आपका कारोबार है, आप इस बात को समझिए। मैं किसी का बॉस नहीं हूं, मैं तो सिर्फ साथी हूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि मैंने ये वाली बातें सुनी है और मेरे को समझ में आई है और मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। आपका साथ दे सकता हूं लेकिन आपका काम नहीं कर सकता। तो बिजनेस आपका है, तेज चलाना तेज चलाइए, धीरे चलाना धीरे चलाइए। अगर आप एक ही महीने के अंदर 4500 पीवी कर लेते हैं, कैलेंडर मंथ के अंदर अगर आप 4500 पीवी कर लेते हैं तो आपको 5500 करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 4500 पीवी पे ही कंपनी आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का खिताब दे देती है। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद क्या होता है, आपको मिलता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का बोनस। जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, यू बिकम एलिजिबल फॉर अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। 4% कंपनी का टर्नओवर का आपको मिलता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद। जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोपोर्शनेटली, लेकिन 4% किस कंपनी का? उस कंपनी का जिसका मंथली टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है। तो ये टर्नओवर उतना ही बड़ा है। इसका मतलब एक छोटा सा माइलस्टोन टच किया हमने, छोटा सा अपने लिए एक अचीवमेंट लिया कि हम एक ब्रॉन्ज बन गए। हमारे को उसके बाद से 10-15 हजार रुपए की आमदनी रेगुलर बेसिस पे होनी शुरू हो सकती है। आप जब ब्रॉन्ज बन जाते हैं उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज के कंप्लीट अ सेल ऑफ 2001 पीवी। अपनी पूरी टीम में अगर सब लोग प्रोडक्ट्स पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं तो 2001 पीवी आपका वैसे ही मेंटेन रहता है। और अगर ये मेंटेन रहता है, आपकी ये इनकम मेंटेन रहती है। जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हैं, मतलब आपकी टीम के अंदर आपने एक और ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट कर दिया, तो कंपनी आपको मौका देती है कि क्यों ना सिल्वर डायरेक्टर बन जाओ। सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए ऑल ये सारी डेजिग्नेशन है, मैं सब पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसकी इमीडिएट नेक्स्ट है सिल्वर डायरेक्टर। आपकी टीम में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और आपने अपने लेफ्ट राइट जितने मर्जी रेफरल्स आपके हैं, अंजू हो गई, अमित हो गया, भारत हो गया, जितने लोग हैं उन सारे लोगों को मिला के अगर आपने 1800 पीवी का बिजनेस एक मंथ में किया तो आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव आप किसी भी डेजिग्नेशन के अंदर हैं तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 14% कंपनी का टर्नओवर है जो कि इन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट एड्स इनटू योर इनकम, आपके प्रॉफिट के ऊपर, रिटेल वाले आपके एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर। इसके अलावा जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, यू आर आल्सो एलिजिबल टू अर्न अ लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ऑब्वियसली देयर आर कंडीशंस। कंडीशन ये है कि जिस लेग में आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वहां पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। अगर वो कर लेते हैं तो ये एक और इनकम है जो आप अपनी किटी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में उतनी ज्यादा इनकम के सोर्सेज एक ही जगह से ऐड करते जाते हैं। किया क्या? हमने सिर्फ दुनिया को यह बताया कि तुम खर्चा ज्यादा कर रहे हो, कम कर लो। जब आप सिल्वर डायरेक्टर होते हैं, आप ट्रैवल फंड के लिए भी एलिजिबल हैं। 5% कंपनी का टर्नओवर एलोकेट किया जाता है फॉर अ ट्रैवल फंड। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं बहुत कामयाब हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि घूम के आ सके कहीं पे। तो ये कंपनी कहती है फंड हमने बना दिया, बहाना आप ढूंढिए, घुमाने हम लेके जाएंगे। हर साल विदेश की 3 से 4 यात्राएं ये कंपनी कराती है। जैसे ये लॉकडाउन और ये सारा स्केयर खत्म होता है, आई एम श्योर वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी। तब तक अपने ट्रैवल फंड के अंदर पैसे जोड़ने शुरू करिए, क्योंकि आपने सिर्फ अपने ट्रैवल फंड से पे करना है, अपना पासपोर्ट पकड़ाना है, बैग पैक करना है और विदेशों की सैर करके आनी है। कंपनी ने अभी साउथ अफ्रीका और एक थाईलैंड का क्रूज किया था पिछले कुछ महीनों के अंदर, विच वाज ह्यूज। 2000 से ज्यादा लोग इन वाले ट्रिप्स के अंदर मुफ्त में कंपनी के साथ विदेशों की ये सैर करके आए। इसके बाद जब आप स्टार डायरेक्टर बनते हैं तो आपको एक कार फंड मिलता है। 5% कंपनी का टर्नओवर वो इसके लिए एलोकेटेड होता है। 80,000 रुपए महीने तक आप मैक्सिमम यहां से ले सकते हैं। अपनी गाड़ी की EMI दे सकते हैं, अपने लिए ड्रीम कार पिक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो सिंगल पेरेंट्स हों, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे वो सुपर ग्रेजुएट हो, हर वर्ग के लोग हैं जिन्होंने इस वाले फंड के माध्यम से अपने लिए BMWs, ऑडीज, जैगुआर्स और ना जाने कितनी सारी गाड़ियां इस वाले वेंचर में आने के बाद अपने लिए परचेज करी, सिंपली फ्रॉम द कार फंड।
हाउस फंड इज गिवन टू द क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव। जब आपकी 6 लेग्स के अंदर आप ब्रॉन्ज क्रिएट कर देते हैं तो कंपनी आपको क्राउन डायरेक्टर का खिताब देती है। 3% ऑफ द कंपनीज टर्नओवर इज गिवन टू यू टू बिल्ड योर हाउस। आपको 1 लाख रुपए महीने तक का मैक्सिमम मिलता है, चाहे उससे एक रेंट दे दीजिए, चाहे ईएमआई दे दीजिए, पैसा आपका, घर आपका, लेकिन मूव टू योर ड्रीम होम, दैट इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स यू टू डू। इसके बाद आखिरी आता है एलीट क्लब बोनस, जो कंपनी की हाईएस्ट 2 डेजिग्नेशन है, डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। 2% कंपनी का टर्नओवर एलोकेट सिर्फ इन 2 लेवल्स के लिए किया जाता है। मैक्सिमम आमदनी जो आप इससे पा सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए महीने तक की। तो अगर आपकी सोच के अंदर स्फूर्ति है, अगर इतनी बड़ी सोचने की कैपेबिलिटी है, तो अपने आप को बांध के मत बैठिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपको इतने सारे मौके देगी कि आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने की आपको कोई ना कोई सीढ़ी जरूर मिले। आइए एक हाइपोथेटिकल मॉडल देखते हैं। इस वाले मॉडल के तहत पे एक हाइपोथेटिकल मॉडल क्यों कह रहा हूं, ये अंदाजन है, ये मेरा बनाया मनगढ़ंत एक वो रचना है मेरी मनगढ़ंत, पर इसलिए है जिससे कि समझ में आ सके कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर मैं ये मानता हूं कि मैंने पूरा महीना लगाया, 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से बात करी और उनको अपना ये वाला आइडिया शेयर किया कि ये वाला एक कारोबार है मैं कर रहा हूं जिसके अंदर मैं अपने लाइफ के अंदर सेविंग्स लेके आ पा रहा हूं और साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहा हूं। 6 लोग मैं बोलता हूं पूरे महीने के अंदर मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग। सो आई हैव 6 पीपल इन माय टीम इन द फर्स्ट मंथ। In case these 6 people they ask me कि आप क्या कर रहे हो, या मैं इन्हें मोटिवेट करता हूं, देखो मैंने ये किया था, मेरे को ये बेनिफिट मिला, आप भी ये करोगे आपको भी मिल सकता है। In case these people decide to do exactly the same, in the second month I have 36 people in my team, in the third month there are 216, in the fourth month there are 1296। अगर मैं टोटल करूं मेरे को मिला के तो ये लगभग 1555 लोगों की स्ट्रेंथ हो जाती है। अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज हाइपोथेटिकल। ये 4 महीने में भी हो सकता है, ये 4 साल में भी हो सकता है, ये 4 हफ्ते में भी हो सकता है और ये कभी ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी मान के चलते हैं, समझ के देखते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये 1555 लोग मेरी टीम के अंदर आ गए और अगर इन्हें भी प्रोडक्ट उतना ही पसंद आया, इन्हें भी सेविंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये भी उतने ही एम्बिशियस है कि अगर कोशिश कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और ये अपनी 100 पीवी की परचेज सिर्फ हर महीने करते हैं, 100 पीवी परचेज एवरी सिंगल मंथ। व्हाई? बिकॉज दे गेट अ सेविंग एट द एंड ऑफ द 4th मंथ। 5th मंथ में इन्हें वाउचर मिलता है जिससे इनकी सेविंग्स में भारी एडिशन होता है। अगर ये सिर्फ 100 पीवी की शॉपिंग करते हैं ये 1555 लोग, तो मेरी आमदनी मेरे सारे फंड्स और बोनसेस को मिला के लगभग 5 लाख रुपए महीने से ज्यादा हो जाती है। 5 लाख रुपीज पर मंथ। आई नो दैट इज ह्यूज, आई नो दैट इज ह्यूज एंड फॉर सम इट माइट बी वेरी लेस, ठीक है ना, पर मैं उस पे नहीं जाऊंगा, ये ज्यादा है या कम पे है उस पे नहीं जाऊंगा। और मुझे मालूम है कि जब मैं 5 लाख रुपए महीने दिखाता हूं तो अभी तक जो ईगरली सुन रहा होता है कि हाँ बताओ गौरव जी क्या कह रहे हो, उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं 5 लाख रुपए ये तो नहीं हो सकता करके यहां से हट जाते हैं। पहली चीज, क्यों नहीं हो सकता? क्या मेरे आसपास में ऐसे लोग नहीं है जो 5 लाख रुपए महीने के कमाते हैं? और अगर वो कमाते हैं उनके कितने 4 हाथ हैं या 8 टांगे? और अगर वो कर पाते हैं तो मेरे पास ऐसी कौन सी कमी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? हाँ ये हो सकता है मुझे नहीं आता, तो क्या मैं सीखने का भी इच्छुक नहीं? क्या मेरे में उतना बड़ा कैलिबर नहीं है कि मेरे को कोई सिखाए और मैं ना सीख पाऊं? अगर मेरे पास कोई ऐसी वीकनेस नहीं है तो फिर मैं कोशिश क्यों नहीं कर सकता? और क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती, मेरा काम यही था कि जो मेरे को समझ में आया वो आपको समझाने का प्रयत्न करूं। मैंने इस वाली गाड़ी में सवार, जैसे मैंने बोला कि 8 सितंबर को मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मिला। मेरे अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण शायद मुझे सितंबर का महीना लग गया सिर्फ इस बात को अपने मन के अंदर, अपने जहन में उतारने के लिए कि मुझे ये वाला कारोबार सीरियसली करना चाहिए। लेकिन अक्टूबर से जब मेरी शुरुआत हुई इस वाले कारोबार की, तब से आज तक की जर्नी अगर मैं बताऊं तो मुझे गर्व होता है बताते हुए कि जहां पे मेरे पास पूरा दिन मेरा ऑफिस के अंदर निकलता है, रिमेनिंग टाइम मैं घर पे आके अपने बच्चों को भी देने की कोशिश करता हूँ, उसके बावजूद मैं कुछ समय निकाल के यहाँ पे डिवोट करता हूँ। एंड आई स्टार्टेड अर्निंग मोर देन 1.6 लाख रुपीज अ मंथ। मुझे 9 महीने हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं 5 लाख पे नहीं पहुंचा, लेकिन अगर मैं 1.6 पे पहुंच गया, एक एक्स्ट्रा इनकम अपनी लाइफ में ऐड कर पाया 1.6 लाख रुपीज टाइप की, और मैं आपको बताने और सिखाने के लिए तैयार हूं, तो मुझे ये बताओ आपको क्या चीज रोकती है? मेरे को यही कॉन्फिडेंस मिला था मेरे सीनियर्स को देख के, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया। उन्हें देख के यही वाली चिंगारी अंदर जली थी कि जब ये इंसान मुझे सिखाने को तैयार है, अभी तक तो घर पे कोई ये बोलता भी नहीं है कि तुम्हारे को बड़ा सोचना है और बड़ा कुछ अचीव करना है, ये मेरा दोस्त मुझे बता भी रहा है कि तुझे बड़ा सोचना है, और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैं साथ दूंगा तेरा, तेरे को सिखाऊंगा भी, तेरे को साथ में लेके जाऊंगा अपने ऊपर तक,
तो मेरे को किस बात की हिचकिचाहट है कि मैं इतना डरता हूं बड़ा होने से? तो मैंने अपने आप से निर्णय लिया कि डर तो नहीं लगता मुझे बड़ा होने से, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और मैंने कोशिश करी। जून के अंदर, जो आप अभी 28 जून देख रहे हैं, अभी भी 2 दिन बाकी हैं इस वाले महीने के। जो लोग आज ही रजिस्टर करते हैं, मैं उनको बता दूं, उनके पास अभी भी 2 दिन है, और 2 दिन काफी हैं हाहाकार मचाने के लिए। अगर आप अपने 6 दोस्तों को रेफर कर पाते हैं इस वाले सिस्टम से, तो आपको इसी महीने के अंदर 2500 रुपीज का वाउचर मिल जाएगा, विच मीन्स कि आपने आज परचेज करी 3200 रुपए की, अगले महीने की परचेज में आपको 2500 रुपए कम मिल जाएंगे। किया क्या? सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपनों की कोई कमी नहीं है। जितना बड़ा आप करने की कैपेबिलिटी रखते हो, उतना बड़ा सपना ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करने को तैयार है। मैं जब यहाँ पे आया था, मैं अचंभित रह गया था जब मुझे सबसे पहली बारी ये वाला चेक दिखाया गया। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे लगा था ये 10 लाख रुपए लिखे हुए, लेकिन जब ध्यान से मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी तो समझ में आया कि सिद्धार्थ सिंह जी की अगस्त 2019 की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये 14 साल पहले इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में एक नौकरी करने के लिए आते हैं कि मेरे को ट्रेनर बनना है, लेकिन कंपनी का प्लान सुनने के बाद और कंपनी का कॉन्फिडेंस देखने के बाद कि वो सिखाने में कितनी इच्छुक है, इन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं कंपनी के साथ। 14 साल लगे, लेकिन 14 साल बाकी लोग भी तो अपने जीवन में लगाते हैं और मेहनत करते हुए लगाते हैं। मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जो कि एक महीने की आमदनी 1 करोड़ रुपए कमाता हो। अगर कोई इंसान 30,000 रुपए कमाता है, somebody earns 30,000 rupees in a month, in a year he earns 3.6 lakh rupees, एक साल की 3,60,000 रुपए बनते हैं उस इंसान के जो 30,000 रुपए कमाता है महीने के। 25 की उम्र पे अगर काम करना शुरू करे और 58 पे रिटायर करे, if he starts working at 25 and retires at 58, it is 33 years, 33 साल होते हैं। 33 into 3.6 into 33 is approximately 1 crore in a lifetime, जिसके अंदर उसने अपना घर भी लेना है, अपनी शादी भी करनी है, अपने बच्चे भी पालने हैं, उनकी स्कूलिंग भी करानी है, उनका कॉलेज भी कराना है, उनको बाइक भी दिलानी है, उनको गाड़ी भी दिलानी है, और अपना घर भी चलाना है, शायद बीच में शिमला तक घूमने भी जाना है, शायद नए कपड़े भी लेने हैं, बच्चों के बर्थडे भी आएंगे, खुद की एनिवर्सरी भी आएगी। एट द एंड क्या रह जाएगा? अगर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये वास्तविकता है कि इसके बाद या तो पेंशन रह जाएगी या टेंशन रह जाएगी। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्फिडेंस रह जाएगा, नहीं मेरे बच्चे शायद मेरी इस वाली इन्वेस्टमेंट से इतने काबिल बन जाए कि मेरा ख्याल रख सके। अपना ख्याल रखने के लिए कोई इंसान पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाता, ये इंसान कर गया। और मेरे को ये लगा, अगर एक इंसान ने ये कर दिया, पहली चीज ये कोई भूत नहीं है, एक इंसान है। ये इंसान है जो एग्जिस्ट करता है। इनकेस ही कैन डू इट, आई कैन डू इट टू। मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, इससे एवरेज कर लूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि अगर होता है तो मैं कोशिश क्यों ना करूं। My family is going to be much better in case I do this. पवन मलिक जी मेरे सीनियर्स में से आते हैं, वेरी फिनोमिनल फेलो। 4 साल पहले इन्होंने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और ऐसी लीडरशिप को देख के मेरे को मजे आ जाते हैं जो इतनी तेजी अपने कारोबार के अंदर लेके आते हैं। 4 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। 250 से ज्यादा लोग इनकी टीम के अंदर 4 सालों के अंदर गाड़ियां खरीद चुके हैं अपनी पहली। इनकी इनकम आज की डेट में 40 लाख रुपए के करीबन है। 18,000 स्क्वायर फीट का अपना घर बनाया है करनाल के अंदर इन्होंने रहने के लिए। अगर ये इंसान ये 4 साल में कर सकता है, मुझे अगर 5 भी लग जाए, 6 भी लग जाए, 10 भी लग जाए, इट इज वर्थ द एफर्ट। मिस्टर राहुल मकरानी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, 12th तक की पढ़ाई करी होगी शायद, लेकिन उसके बाद इन्हें किसी ने मौका दिया। मेरे को हैरानी है कि किसी ने एक 12th पास इंसान को मौका क्यों दिया, और उससे बड़ी हैरानी है कि इसने मौके को समझ कैसे लिया। जब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता तो इन्हें कैसे समझ में आ गया। सो व्हाटएवर ही कुड, ही हैड टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, ही कुड मेक इट अप विद हिज पैशन। जो चीजें इन्हें अपनी आर्थिक तंगी और एजुकेशन के अभाव के कारण सहनी पड़ रही थी, उससे निकाल पाई इनको इनकी खुद की ऊर्जा। आज की डेट में 10 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, और 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी कमाते हैं, एक ऑडी गाड़ी चलाते हैं। मेरे बहुत अजीज मित्र, और मेरे को कितना खुशी है अंदर से कि इनको आपको इस सेशन के एंड में सुनने का मौका मिलेगा। अगर 9 महीने पहले मेरे को इस शख्स का कॉल नहीं आया होता, शायद ये इतनी बड़ी परिभाषा इस कामयाबी की मैं आपको सुना ही ना पा रहा होता। I feel blessed that I'm surrounded with such people who are such big dreamers, who are so infectious, जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर कोई मुर्दा भी होगा तो वो भी चीख चीख के बोलेगा कि ऑडी तो ले ही लेनी चाहिए। I feel blessed to be friends with this gentleman, Mr. Nitin Kumar Dhiman, who is the founder of Team Elite and is going to be on the panel a little while later.
Miss Dipali Patrawala ji. Miss Dipali Patrawala was a housewife. She asked her husband कि मैं अपने फ्री टाइम के अंदर कुछ काम कर सकती हूँ. हस्बैंड ने बोला ठीक है कर लो, तुम्हारा टाइम है, तुमने जो करना है कर लो. लेकिन आज की डेट में दीपाली पात्रावाला जी इज एन एम्बेसडर विद वेस्टीज, 2 मर्सिडीज बेंज खरीद चुकी हैं, 35 लाख रुपए से ज्यादा महीने की आमदनी है, और पति देव इनके फुल टाइम अपनी वाइफ का सपोर्ट करते हैं इस वाले बिजनेस को और ज्यादा बिल्ड करने के लिए. मिस शिबानी मोहंती, अगेन एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने आया जब मैंने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को देखा. मैंने बोला मेरे को क्या जरूरत है ऐसा कोई भी काम करने की. माय इनकम इज गुड, माय लाइफस्टाइल इज बेटर, माय प्रोफेशनल डेजिग्नेशन इज सुपीरियर, मैं तो बहुत मौज में हूं, तो मेरे को क्या जरूरत है. तो मेरे को किसी दोस्त ने वाली बात समझाई कि ये तब तक है जब तक हो. अगर आप नहीं हो एक बारी के लिए, इट इज अ वेरी वेरी बैड थॉट, लेकिन फिर भी सोचो अगर आप नहीं हो, हु टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, व्हाट हैपेंस टू द फैमिली. आपने उन्हें आदत डाल दी कि अच्छी जगहों पे जाना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छी जगह अच्छी चीजें अफोर्ड करनी है, उसके बाद कौन ये पूरा करने वाला है. मैंने बोला उसके लिए टर्म प्लान करा रखा है. वो बोलते अच्छा आपको अगर आज की डेट में मैं 2 करोड़ रुपए दे दूं, आपको पता है 2 करोड़ का क्या करना है. और मुझे हंसी आ गई. नहीं. उन्होंने बोला तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी फैमिली को पता है, हो सकता है जब जरूरत पड़े तब तो पैसे ही ना हो. ये एक इंसिडेंट मुझे समझ में आता है. मिस्टर मोहंती ने, इनके हस्बैंड ने ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, 3 साल काम किया, बहुत बेहतरीन एक टीम बिल्ड करी, 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी पे पहुंचे. एक एक्सीडेंट के अंदर उनका निधन हो गया. उस सीट को वेस्टीज ने ट्रांसफर किया उनकी वाइफ के नाम पे, जो है मिस शिबानी मोहंती, जिन्होंने उसके बाद एक्टिवली इस वाले काम को संभालना शुरू किया, क्योंकि उन्हें विश्वास आया कि 10 से 12 महीने हो गए मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए, मेरे परिवार वालों ने आके मेरा ख्याल पूछना छोड़ दिया, लेकिन ये कंपनी है जो हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती जा रही है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और पैसे आते जा रहे हैं. इन्होंने अब फुल टाइम अपना यहाँ पे डिवोट करना शुरू किया. तो शी अर्न्स क्लोज टू 10 to 12 लाख रुपीस पर मंथ फ्रॉम द सिस्टम दैट हर हस्बैंड क्रिएटेड एंड टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ एंड हर फैमिली. अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख पाती हैं. 10 से 12 लाख रुपए कमाती हैं उस वाले वेंचर से जो इसके हस्बैंड ने जीते जी इनके लिए क्रिएट किया. मिस्टर सैयद अरशद अहमद ब्लाइंड है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर भी हैंडीकैप नहीं है. हैंडीकैप वो लोग हैं जो अपने आने वाले आसपास वाली परिस्थितियों को नहीं देख पाते. नौकरी में सैलरी नहीं मिल रही है और जॉब्स अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है, हर चीज की कॉस्ट डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स होती जा रही है, लेकिन लोग ये देख ही नहीं पा रहे कि उनकी इंक्रीमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रही. जो नहीं देख पा रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि असलियत में तो आंखों से वो हैंडीकैप्ड है. ऐसे लीडर भी हैं जो कि यहाँ पे 3 से 5 लाख रुपए कमाते हैं, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस कंपनी की ट्रेनिंग को. बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो दावे और वादे जितने भी बड़े कर लेती हैं, लेकिन देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई दिस कंपनी इज द नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. ये देश की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बन पाई, जबकि इतने सारे कंपेटिटर्स, इतने सारे सीजन लोग इनके आसपास हैं. इसलिए क्योंकि इस कंपनी के अंदर एक ट्रेनिंग का बहुत जबरदस्त कल्चर है. लगभग 16 भाषाओं के अंदर 20,000 से ज्यादा ट्रेनिंग्स हैं ये कंपनी जो कंडक्ट करती है ऑल अक्रॉस द कंट्री. आप जितना सीखने की भूख रखते हो, उतनी भूख को सेशिएट करने की, उतनी भूख को पूर्ण करने की ताकत ये ऑर्गेनाइजेशन रखती है, क्योंकि सिखाती ज्यादा है, इसलिए कामयाब होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. क्या सारे कामयाब हो जाते हैं? तो सारे तो बेटा एक क्लासरूम के अंदर बच्चे पास भी नहीं होते. तो जो पढ़ता है वो पास करने की प्रोबेबिलिटी रखता है और अच्छे नंबरों से पास करता है. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. अब आता हूं इस वाली बात पे कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि जितने लोग हमारे साथ अभी तक कनेक्टेड हैं वो सारे वो लोग हैं जो इस बिजनेस वाले एंगल को अपने माइंड के अंदर फीड कर चुके हैं. अगर बिजनेस दिमाग में है तो मेरी राय है, अगेन मैं राय दे सकता हूं क्योंकि मैं बॉस नहीं हूं. यू सो वट यू रीप. आप जो बोते हो आप वही काटते हो. तो मैं एडवाइज करता हूं टू स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन. जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप 282 पीवी की शॉपिंग करें, विच इज लगभग 9,000 रुपीज, लगभग 9,000 रुपए की शॉपिंग होती है. 9,000 की शॉपिंग करने का फायदा क्या है? सबसे पहली चीज, आप 8%, मैंने बताया था 5% से शुरू होता है, 600 पीवी करते हो तो 8% पे आते हो. पर अगर आप 282 की शॉपिंग करते हो, आपकी रेस शुरू ही 8% से होती है. आप 8% के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हो. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, आपके पास प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा है, 9,000 रुपए का अगर खर्चा करोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा सामान आ जाएगा. तो अगर कारोबार करना है, क्यों ना पहले अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया जाए कि मैं आगे कल किसी को ये वाली बात बताने जा रहा हूं, उसके पास क्या पहुंचेगा, उसका कॉन्फिडेंस मैं अपने अंदर भर लूं. अगर मेरे पास इतना सारा प्रोडक्ट होता है तो मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है, और मेरे को ये मालूम है कि बिजनेस किसी ऐसे इंसान से कभी नहीं बिल्ड किया जाता जो वेट करे इंस्ट्रक्शंस की. बिजनेस सिर्फ वो लोग बिल्ड करते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि बिजनेस को क्रिएट करा जा सकता है.
तीसरी चीज, इसमें आपको 750 का वाउचर भी मिल जाता है। और दूसरी चीज, जो चीज आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हो उसको आप आगे एजुकेट भी कर पाते हो। मैंने बताया 5500 पीवी आप करते हो तो आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो। अगर 282 पीवी से सब लोग शुरुआत कर रहे हैं तो आप जल्दी बनते हो, नहीं तो समय से तो बन ही जाओगे। अगर 9,000 स्टिल सीम्स कि 9,000 रुपए तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतनी ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट मैं नहीं लगा सकता अपने सपनों के ऊपर, अगर ऐसा कोई थॉट है, अगेन आई रिस्पेक्ट दैट टोटली। मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा, अगर बिजनेस करना है तो इसके नीचे स्टूप डाउन मत करिएगा। 100 पीवी की शॉपिंग करिए, 3200 की परचेज करिए, 5% के स्लैब पे स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। इफ यू गो लोअर देन दिस, आप खुद अपने बिजनेस को अपने आप से नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मेरा मानना है। एनीवेज, तो ये दो में से आप कोई भी चीज अपने लिए पिक कर सकते हैं और वहां से अपने इस वाले बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दैट कंक्लूड्स जो मेरे को आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना था। मैंने आपको बताया कि आइडिया क्या है कि अपनी दुकान बदल लीजिए और आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी है? कुछ नहीं, घर का जो सामान आ रहा था वो अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस पे यहां से लेना है। रिस्क कितना है? जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं तो रिस्क ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा? जब सेविंग्स दे रहा हूं तो हर चलता फिरता इंसान मेरे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है। काम कौन करेगा उनमें से? क्योंकि ट्रेनिंग्स कंपनी कंडक्ट करती है, जो सीखेगा वो सब काम करेंगे, जो नहीं सीखेगा वो नहीं काम करेगा। ठीक है ना? इसका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है? मैंने आपको उसके लिए भी बताया। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4500 स्टोर्स हैं, 7 कंट्रीज में काम कर रही है और 50 कंट्रीज में ओपन करने का प्लान है। अगर कंपनी का एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो ऑटोमेटिकली आपका प्लान बन जाता है। और स्ट्रैटेजी क्या है, उस सब के ऊपर वर्क करने के लिए हम सारे के सारे इकट्ठे एक टीम की तरह काम करेंगे। टीम के अंदर सारे क्रिकेटर्स, सारे बैट्समैन नहीं होते, कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, कोई विकेट कीपर होता है। हर एक की अपनी अपनी भूमिका है। इसीलिए मेरे को टीम बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे के जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है। थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, दोनों इकट्ठे मिलके बढ़ेंगे तो मजा बड़ा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये थी वो प्लान, ये वो आविष्कारी चीज, ये वाला आइडिया जो 9 मंथ्स पहले मेरे को स्ट्राइक किया। आई डिड नॉट इवन वेट अ सिंगल मोमेंट। मैंने उसी सेकंड अपने आप को रजिस्टर किया था, उसी दिन अपनी परचेज कंप्लीट करी थी और अगले दिन से तो मैं ये फैसला कर चुका था कि इस कंपनी के बारे में जानना चाहता हूं। हाँ, सरेंडर करके काम करना शुरू किया 1 महीने बाद, क्योंकि मेरे को पक्का होना था कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत बढ़िया है और मेरे को वो होमवर्क का डंप देने वाला कोई नहीं था। हम सब नए थे, हम सब एक दूसरे से सीख रहे थे। लेकिन आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिखाने वाले लोग हैं, पूरी की पूरी बनी हुई ट्रेनिंग है, जितने सवाल हैं उससे ज्यादा जवाब हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि अब आइए, समय 9 महीने का नहीं लगेगा। अगर आपको 2-2 महीने के अंदर अपना जीवन बदलना है तो उस ऊर्जा और उस एनर्जी के साथ आइए। मैं आगे लेके चलता हूं और आपको एक ऐसे मोड़ पे लेके आता हूं, एक ऐसे दिग्गज से मिलाने की आपको चेष्टा करता हूं, who has impressed anyone and everyone who has come his way। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने आप को एक स्टूडेंट से एक मोस्ट लव्ड, मोस्ट नॉलेजेबल लीडर के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। आई वुड टेक द इमेंस प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग दिस इंडिविजुअल, जो बहुत अजीज है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, एंड इज लीडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स इन वेस्टीज टुडे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर वेरेवर यू आर for Mr. Sarthak Sharma ji. Sarthak ji, can you hear me? Yes, sir. Thank you so very much. Thank you so much. Yes, sir. Thank you so very much, everyone. Hello, everyone. मेरा नाम सार्थक शर्मा है. I'll keep it very short क्योंकि I hope आप सब excited होंगे जो फाउंडर हैं टीम एलीट नितिन सर, उनको सुनने के लिए। मैं और गौरव अग्रवाल सर के लिए जहां पर भी हैं आप, एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होनी चाहिए फॉर सच अ फैंटाबुलस प्रेजेंटेशन। मैं मतलब पूरा ग्लूड था पूरे टाइम, है ना। इतनी अच्छी तरह उन्होंने गागर में सागर भर दिया, इतना कुछ बताया। एंड मैं बस अपनी स्टोरी ही शेयर करना चाहूंगा। मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था मार्जगसन आईपी यूनिवर्सिटी से, विच हैपेंस टू बी द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली। और तब मैं इस कंसेप्ट के बारे में ऐसे जान रहा था, सब कुछ समझ रहा था। और मेरे पिताजी साइंटिस्ट हैं DRDO में, तो मेरा भी दिमाग बचपन से वैसे ही कंडीशन हुआ है कि हर चीज को एनालाइज करने का, देखने का, समझने का। तो मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देख रहा था। ये पता नहीं ये चीजें सही होती है कि नहीं होती हैं, अच्छी होती है कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशंस, ये सब। बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही थी कि जैसे मेरे 2 साल इंजीनियरिंग के निकले, आई रियली नेवर वांटेड कि मेरे अगले 2 साल भी, और इनफैक्ट पूरा फ्यूचर ऐसे निकले। बहुत अनप्रोडक्टिव और बहुत नॉर्मल गया था, जहां पे मैं देख रहा था मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहा। मेरे सामने एक चीज आई थी
जहां पे मुझे डर भी लग रहा था, आई वॉज नॉट वेरी श्योर मैं सही कर रहा हूँ, क्या चीज है, कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। बट द सेम टाइम मेरे को ये भी लग रहा था यार कुछ अगर मैं सेम ही चीजें करता रहूंगा लाइफ में तो मुझे कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। आई रियली नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू गेट समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ लाइफ। और इसी थॉट के साथ मैंने बस इतना सा सोचा कि मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहता हूँ। मेरे को लगता है पर्सनली कि जो इंसान अगर एक क्लोज माइंडेड रहता है तो वो एजुकेशन का भी उसका क्या फायदा होगा। एजुकेटेड इंसान तो सिर्फ वही हुआ जो कहे मैं भी सही हो सकता हूँ, आप भी सही हो सकते हो, आपसे कुछ सीखते हैं और कुछ अपना बताते हैं, देन वील कम टू अ कंक्लूजन। मैं एक अनएजुकेटेड या क्लोज माइंडेड सोच भी रख सकता है, नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, अरे कंपनियां खराब ही होती हैं, अरे बेकार ही होता है सब कुछ, और उसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। मैं वो भी कर सकता था और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे भी कि नहीं बात ही नहीं करनी, नहीं हम तो ऐसे ही हैं। बट द सेम टाइम मुझे लगा यार मैं क्या किस बात का एजुकेटेड हूं अगर मैं दूसरे की बात ही नहीं समझना चाहता। मैंने उनसे बात रखी, अपने डाउट्स रखे जो भी मेरे दिमाग में चल रहे थे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे रियलाइज हुआ यार ये भी कोई ऐसा नहीं कि बचपन से वेस्ट चीज ही कर रहे थे, ये भी अपने करियर में चल रहे थे और एंड वो इनके सामने अपॉर्चुनिटी टकराई, उन्होंने भी अपने सारे डाउट्स क्लियर करे, सारा आंकलन करा और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया इसको, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने जो भी अपने डाउट्स रखे उसका मेरे को एक सैटिस्फैक्टरी आंसर मिला, एंड विद द सिंपल थॉट ऑफ अर्निंग 5 to 10,000 अ मंथ आई रियली स्टार्टेड। एज अ स्टूडेंट मनी आप अपनी पॉकेट मनी भी निकाल रहे हो तब भी आप अपने आप को सक्सेसफुली कहोगे, और मैंने वही थॉट के साथ स्टार्ट किया। तो ट्रेनिंग्स ली मैंने, प्रोडक्ट्स यूज करे, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छे मेंटोर्स, बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे मिला। मेरा सबसे बड़ा डाउट ही यही था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और वो पहली ट्रेनिंग में ही इवेपोरेट हो चुका था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा एजुकेशन अच्छी मिल रही थी जहां पे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब तो मैं तोड़फोड़ मचा दूंगा। चौथे पांचवें महीने से जो मेरा सबसे पहला छोटा सा टारगेट था कि मैं घर से पैसे लेना बंद कर दूं, जो मुझे लगता था कि मांगना अब अच्छा नहीं लगता है, वो 20 एट दैट टाइम, और मैंने वही किया कि मैंने चौथे पांचवें महीने से घर से पैसे लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट वाज अ क्विक रिच स्कीम के अगले दिन से ही मेरे को करोड़ों रुपए आने लग गए, लेकिन हाँ मैं चौथे महीने से मैं 5 से 10 हजार रुपए कमाना शुरू कर चुका था, एंड दैट गेव मी इमेंस कॉन्फिडेंस, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं कर पा रहा था। By the time my third year ended, I could purchase myself a TVS Apache RTR and worth almost 82,000, और उसमें मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था क्योंकि उसके पीछे मेरे को बेशर्मी से डैड्स गिफ्ट नहीं लिखवाना था, है ना। वो एक सेल्फ अर्न्ड बाइक थी और मेरे को एक चेक पॉइंट मिल चुका था कि अगर मैं एट द एज ऑफ 20 ये कर सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ आगे अगले नेक्स्ट डेकेड में अगर मैं देखूं 30 साल की उम्र तक बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बना। बाय द टाइम माय कॉलेज वाज एंडिंग, जितना मेरे कॉलेज का पैकेज लग रहा था उससे डबल मेरी ऑलमोस्ट इनकम होने लग चुकी थी, तो देयर वाज नो पॉइंट फॉर गोइंग फॉर प्लेसमेंट्स। फिर कौन नौकरी करना चाहेगा जब आप उससे डबल कमाना शुरू कर ही चुके हो। जस्ट टू प्रूव माय पेरेंट्स, ऑब्वियसली ये मेरे घर वाले नहीं समझ सकते थे, खासकर जब आपका सरकारी नौकरी वाला बैकग्राउंड होता है। जस्ट टू प्रूव माय पेरेंट्स मैंने उनको 5 से 5.5 लोगों की गैदरिंग में, एक बड़े से ऑडिटोरियम में बुलाया और वहां पर उनको बताया कि मैंने एक 8.5 लाख की Honda i20 खरीद ली है, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एक्सपेंसेस अपना सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। एंड वहां पे उन्होंने उनको ब्लेस किया और वहां पे उन्होंने कहा ठीक है यू गो अहेड विद दिस। वहां से बहुत सा, और यही वाली जो स्टोरी कि कैसे मेरे 2 साल इंजीनियरिंग के निकले पहले वाले और कैसे मेरे 2 साल इंजीनियरिंग के निकले बाद वाले, बस ये स्टोरी मैंने देश के अलग अलग कोनों में मेरे को बुलाया गया, मैंने शेयर करी, चाहे वो दिल्ली रहा, चाहे मुंबई रहा, बैंगलोर, पुणे, जो भी आप सिटी सोच सकते हैं इंडिया की, वहां पर मैंने ये स्टोरी शेयर करी। और वहां पर भी मुझे कुछ ओपन माइंडेड लोग मिले मेरे जैसे। हाँ वो भीड़ में कुछ थे, लेकिन सक्सेस भी कुछ ही लोगों को मिलती है, और वहां पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हाँ मैंने तो कुछ अच्छा अर्न किया ही। मेरी टीम में आज 8 लोग हैं जो अपनी खुद की गाड़ियां ले चुके हैं, और वो मेरे को ऐसे ही किसी न किसी ऑडिटोरियम में टकराए थे। दे ऑल्सो हैड डाउट्स, दे ऑल्सो हैड कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनको भी कुछ ना कुछ शंकाएं थी, बट उनके अंदर एक विलिंगनेस भी थी कि यार जानना तो है, करना तो कुछ है, अगर भगवान ने मेरे सामने कुछ पहुंचाया है तो देयर मस्ट बी समथिंग, राइट। और इसी वजह का मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि शायद मैं कुछ और कर रहा होता, शायद बहुत कमा भी रहा होता, लेकिन इम्पैक्ट कितना बड़ा दे पाता। आज कितने सारे लोग हैं जो गाड़ियां, बाइक, 10 चीजें और ले पा रहे हैं और अपने फ्यूचर बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं। रिसेंटली मैंने अपने पिताजी को एक Honda Amaze गिफ्ट करी उनके बर्थडे पर। मेरे पापा को एक सरकारी गाड़ी मिल सकती है जिससे वो ऑफिस जा सकते हैं, और जब भी वो शायद ऑप्ट भी करने वाले थे इसके लिए, उससे पहले मैंने उनको गाड़ी गिफ्ट कर दी उनके बर्थडे पे। और आज मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी वो ऑफिस में गाड़ी लेकर जाते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शर्मा जी आप ये अपनी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बहुत खुशी से बताते हैं कि नहीं मेरे बेटे ने मेरे को ये गाड़ी लेके दी है, मैं इसी पे जाऊंगा और अब मैं रिटायरमेंट तक इसी में जाऊंगा, ठीक है। और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और शायद हाँ जैसे हम कहते भी हैं कि शायद वो लोग फिर अपने बच्चों से जाके बोलते होंगे कि शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखो, ठीक है। तो मेरे को वो बहुत अच्छी चीज लगती है। एंड इन दिस टाइम
मैं तो ये उस टाइम ओपन माइंडेडनेस रखी थी। आज के टाइम पर अगर हम ओपन माइंडेडनेस नहीं रख रहे हैं, आज कितने सारे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, 2-2 3-3 डिग्री है उनके पास, लेकिन वो उसी डिग्री के साथ घर पे बैठे हुए हैं। देयर आर पीपल जो आज यूट्यूब चैनल है उनका, उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, इंस्टाग्रामिंग कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आज हमें ट्रेंडिंग चीजें देखनी पड़ेगी। दिस इज 21st सेंचुरी। और यहां पर अगर हमें ट्रेंडिंग चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, एक ओपन माइंडेडनेस। एक स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि हाँ, वक्त बदल रहा है और मुझे सही चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ देम, और वन ऑफ देम क्या, जो सबसे ज्यादा अब इंडिया को सपोर्ट करने वाली है इन द नेक्स्ट 5 years, दैट इज माय बिलीफ। और ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूं अपने एग्जांपल से। मेरे को टीम लीड ज्वाइन करे हुए सितंबर में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया सर के साथ और सबके सारे सीनियर्स के साथ। बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने ग्रो किया। अराउंड मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू लगा, थोड़ा सा बिजनेस डगमगाया और अप्रैल में मेरे को जो इनकम आई दैट वाज समवेयर अराउंड 62,000, जो थोड़ी कम हुई। और मैं शायद मेरी जॉब होती तो मैं अगले कुछ महीनों के लिए डर चुका होता, बट दिस वाज बिजनेस एंड दिस वाज नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे उल्टा हुआ, मेरी अप्रैल की जो काम हुआ, ठीक है, जो मेरे को पैसा आया वो इंक्रीज होकर आया 86,000 के आसपास। और उसके बाद पिछले महीने जो मेरे को जून में जो आया, जो मई का मेरा काम हुआ, दैट वाज टचिंग ऑलमोस्ट 1 लाख। एंड आई एम वेरी श्योर, अगर आप सोच रहे हो 20-20 हजार की ये बढ़त कर रहा है तो 1,20,000 होगा। जितना मेरा बिजनेस हो चुका है, ये ऑलरेडी मेरे को 1,25,000 प्लस ही दिख रहा है। तो मैं हैरान हो रहा था, जहां पे मेरे सारे दोस्त डर रहे थे कि पता नहीं इस बार कितनी कट के आएगी इनकम, 50% आएगी या उतनी भी नहीं आएगी, वहां पे मैं हैरान हो रहा था कि हर बार मेरा इजाफा हो रहा है इनकम में, है ना। तो दैट वाज माय स्टोरी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, है ना। जहां पर अगर मैं यही इतनी सी बात बोलूं, घर पे बैठे बैठे सारे मूवीज देख ही रहे हैं। बाहुबली में अगर आप एग्जांपल देखो, बाहुबली में एक इंसान था जो बहुत डरा डरा रहता था, लेकिन बाहुबली उसके साथ रहा तो उसने एक बार उसको पुश किया कि जब दुश्मन तेरे सामने करें तू लड़ सकता है, और वो लड़ने चला जा चुका था। संगत से इतना बड़ा असर पड़ता है। द बेस्ट पार्ट जो मैं आपको कह सकता हूं यहाँ पर, द पीपल अराउंड यू। अगर गौरव अग्रवाल सर जैसे लोग, नितिन सर जैसे लोग और इतने सारे सीनियर्स हैं, चाहे वो विपिन अग्रवाल सर हों, इतने सारे सीनियर्स हो, एंड यू गेट सच अ पावरफुल कम्युनिटी अराउंड यू, है ना, इतनी अच्छी एसोसिएशंस मिल जाती है, तो संगत से रंगत ऑटोमेटिकली बदलने लग जाती है। आप नेटफ्लिक्स कम और ये वाली ट्रेनिंग्स अटेंड करने लग जाते हो तो आपके अंदर एक अच्छा बदलाव आने ही लग जाता है। और जब बदलाव आता है तो आप ऑब्वियसली आपकी इनकम और वो आसपास हर चीजों में होता ही होता है। एंड ये मेरी स्टोरी रही पिछले कुछ महीनों की, एंड आई एम वेरी श्योर, ठीक है, आप भी अगले कुछ महीनों में मेरे से भी एक बहुत अच्छी स्टोरी बता रहे होंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड थैंक यू सो वेरी मच गौरव सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर, ताकि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। एंड मेरे को लगता है ये पूरी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने डिसाइड किया टू बी ओपन माइंडेड, आपने डिसाइड किया टू परस्यू व्हाटएवर यू लाइक, आपने डिसाइड किया टू लर्न व्हाटएवर यू डिड नॉट नो, एंड आपने डिसाइड किया टू कोच पीपल विद व्हाटएवर यू फाउंड आउट. I think it was because of your decisions that many big decisions can be made now. So thank you so much for being such a big icon for all of us, and I hope you continue to grow and you continue to shine, और आपका नाम सिर्फ यहीं पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर बार बार ही सुनाई दे. Thank you so much सार्थक जी for your time. Thank you so much. इतना इम्प्रेस्ड हूं मैं इस कहानी से, इस इंडिविजुअल की. इट इज अनबिलीवेबल. अगर रास्ते भगवान जी खोलने के लिए तैयार हैं तो मैं जबरदस्ती अपने दरवाजे पे ताला लगा के क्यों बैठा हूं. खैर, अभी आपने जिनको सुना, ये करिज्मेटिक लीडर जो थे, ये आपका मैंने परिचय कराया था एकलव्य से. अब आपका परिचय होने जा रहा है द्रोणाचार्य से. जैसे सचिन तेंदुलकर के पास एक अचरेकर सर होते हैं, उस तरह से सार्थक जी, मेरे, गुलशन जी, विपिन जी, दीपेश जी, आकृति जी, अपर्णा जी, जितने भी लीडर्स को हमने अभी तक यहाँ पे सुना है, हम सारे के सारे लीडर्स के पास भी एक अचरेकर सर हैं जो हमारे को सचिन तेंदुलकर बनना सिखाते हैं, जो हमारे को बताते हैं कि बड़े शॉट मार लड़के. तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं विदाउट मच डिले टू द मैन हिमसेल्फ.
Nitin ji, are you there? Yes, sir. Thank you so much for accepting this invitation and being with us, sir. आप अपना screen please on कर लीजिए, आपको देखने की बड़ी तमन्ना है. Thank you so much, sir. Thank you so much, Nitin ji, for accepting this invitation. Thank you so much for starting this brand new chapter in our life 9 months back. And जैसा मैं आपको बता रहा था फोन पे कि ये चैप्टर थोड़ा सा हमने बड़ा करने का आपके आशीर्वाद से प्रयत्न किया है. आज आप उस वाले चैप्टर को विजुअलाइज कर रहे हो, आप हमारे साथ उस वाले चैप्टर का हिस्सा हो. दैट इज अ वेरी वेरी बिग ऑनर. ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. आपने मुझे इनवाइट किया और सच में आपसे इतने अच्छे शब्द सुन के मैं इतना मोटा हो रहा हूँ. मेरा खून बढ़ रहा है, मेरा फैट बढ़ रहा है और मजा आ रहा है आपसे इतने प्यारे शब्द सुन के अपने लिए. और मैंने आपसे जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और जो आपने शुरू की ये मुहिम, आज मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा था कि वो 500 लोग आपके इस सेशन को शुरू होने से पहले शुरू हो गए थे. ये आपकी ब्रांड वैल्यू है और मैं हमेशा आपके बारे में सुना है कि गौरव अग्रवाल जी के फैन नहीं बनते, डाई हार्ड फैन बनते हैं और यहाँ ज्वाइन नहीं होते लोग. और आज की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझे बहुत मजा आया सर. थैंक यू सो मच सर. और सार्थक जी ने भी बहुत अच्छे से पार्ट लिया सर. सार्थक जी बहुत, मैं कहता हूँ कई लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल होते हैं लेकिन ये इंसान है जो भगवान जी इनके रास्ते से कांटे हटाते रहते हैं. कितने प्यारे इंसान है, इनको कोई स्ट्रगल नहीं होना चाहिए. तो थैंक यू सो मच सर. आपने मुझे मौका दिया इस सेशन को लेने का. और बाकी लोगों के लिए भी मैं गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ. आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने गौरव अग्रवाल जी को सुना होगा और एक अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में नॉक कर रही है. मैं हमेशा कहता हूँ कि कामयाब लोग अपने लिए पहले से ही तैयारी रखते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसको हथियार लूंगा. लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इसी इंडस्ट्री की बदौलत कि नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी टकराती है लोगों से. ये खुद जाके लोगों के पास आती है कि आओ तुम्हें मैं कामयाब बनाती हूँ. लेकिन जिनकी तैयारी नहीं होती, जिनकी सोच नहीं होती, वो बहुत सारे लोग इसको एक आम सी घटना मान के इग्नोर कर देते हैं. मेरे साथ भी अपॉर्चुनिटी टकराई थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. 5वां सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, एग्जाम हो गए थे. 6ठा सेमेस्टर शुरू होने में भी 11 दिन बाकी थे और मेरे कॉलेज में जो मेरा रूममेट था उसका भाई उसको कुछ समझा रहा था और मैं कुछ दिसंबर महीना था, 15 दिसंबर का टाइम था और मैं रजाई ओढ़ के जोर जोर से हंस रहा था कि एक इंजीनियर को बेवकूफ बना रहा है, घोड़े की कहानियां सुना रहा है, तोते की कहानियां सुना रहा है, एक हाथी की कहानी सुना रहा है. और मैं बहुत हंस रहा था और हंसते हंसते मेरे को खुजली होने लगी कि मैं अब इसकी उतारूं जो उसको प्रेजेंटेशन दे रहा था. ये मेरे से भी नहीं टकराई थी, मैं खुद टकराया था. आप ये बोल सकते हैं कि मैं खुद उठ के मुंह धोते धोते मैंने उस आदमी को जानबूझ के, जो उसको प्रेजेंटेशन दे रहा था, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा था, मैंने उसको बोला सर ये सिर्फ गांव वाले लोगों का काम है, धोती पहनने वाले, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता. हमने अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त फाइट की है तब इंजीनियरिंग करने के लिए पहुंचे हैं. ये मेंबर बनाने वाला काम आप बाहर जाके किसी को समझाइए, हमारे काम का नहीं है. और यकीन माने वो इंसान ने मेरे को जिस तरीके से डील किया, जिस तरीके से उसने मेरे को पेशेंसली सुना और फिर जाके उसने मेरे को इसके बारे में बताना शुरू किया. सच बताता हूं वो जिंदगी का पहला दिन था कि मेरे को अपनी कीमत पता चली. उस इंसान ने मेरे को बताया कि 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है. मेरे पापा जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, 28,000 रुपीज की सैलरी बढ़ी थी. मेरे को इंजीनियरिंग के लिए भेजा था, तब उन्होंने कहा था कि 32,000 का पैकेज से तेरी शुरुआत करो. ये मेरी लिमिट थी कि 32,000 रुपीज पर मंथ कमाने होते. एक इंसान बता रहा था 4 लाख रुपीज और यकीन माने मैं सन्नी देओल बन गया था अगले 15 मिनट के लिए. मेरे को ऐसा लगता फोड़ देंगे अब ये 4 लाख रुपया कमा लेंगे. एक इंसान दिखाया जो एक महीने का 3 लाख रुपया कमा रहा है, सॉरी एक वीक का 3 लाख रुपया कमा रहा है. 12 लाख रुपया. मैं विश्वास नहीं आ रहा था मेरे को कि ऐसा होता है इस दुनिया के अंदर. लेकिन वो लाइव दिखा रहे थे कि 12 लाख रुपया महीने का कमा रहा है. 2006 की ये बात है और मेरे 15 महीने अभी इंजीनियरिंग के बाकी थे और मेरे को ये मौका मिला कि वो 4 लाख रुपया बोल रहा था और उसने एक फिगर दिखाई 12 लाख रुपया महीने का. और मैं पूरे तरीके से सन्नी देओल के रूप में आ गया. मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ चूमा और मैंने कहा कि वो बड़ा हैरान था कि ये क्या कर रहा है. मैंने बोला सर अगर ये थोड़ी सी भी चीज पॉसिबल है जो तो आपने बताई, अगर ऐसा होता है
तो मैं इस फिगर को क्रॉस करके बताऊंगा, मैं पहला स्टूडेंट हूंगा जो इस फिगर को क्रॉस करके। और अगर आपने इसमें कोई किसी प्रकार की बेकार बात की होगी तो आप मेरे को समझ लेना कि सर मैं पंजाबी स्टाइल में कूटता हूं। ये मेरे पहले वर्ड थे मेरी अपलाइन के साथ, कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर मैं इसको पूरा करके बताऊंगा। और वो सनक थी पहले दिन की, और अब तक वो सनक लगातार बढ़ती रह रही है। वो लिमिट थी जो पहली बार मेरे दिमाग की किसी ने खोली थी। मेरी कहानी बहुत सारे लोगों की कहानी की तरह सेम है। एक मिडिल क्लास इंसान, लाइट तक बचाना, स्कूटर का पेट्रोल तक बचाना, हर जगह पैसे बचाने की सोच रखना, बहुत सारे दोस्त आगे निकल जाना, ऐसे बहुत सारे रीजंस हमें अपने आप की वीकनेस के तौर पे पता होते हैं, और हम उन वीकनेस को छुपा के जो सामने प्रेजेंट करते हैं लोगों को, और उनसे जो अच्छी बातें सुनते रहते हैं, हम हमेशा उसके साथ अवंडर बना के घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारी वीकनेस पता थी मेरी, कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, मेरी घर में दीदी को पापा जी डॉक्टरी की पढ़ाई करवा रहे हैं। मैं उस टाइम पे समझता था कि 3200 रुपया मेरे को महीने की पॉकेट मनी आती थी, और मैं उसमें भी 15 तारीख को अपने पापा को ब्लेम करना शुरू होता है कि भाई 3200 रुपए में होता क्या है यार, उनको पता नहीं लगता कि इतने से पैसे में कैसे चलता होगा। लेकिन उस टाइम पे मेरी बेशर्मी थी कि मैं वो सोच नहीं पा रहा था कि 3 बच्चे, एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, एक मैं कर रहा हूँ, हर 6 महीने के अंदर 2.5 लाख रुपया उनको जमा करवाना पड़ता है हर एक बच्चे का, और 3200 रुपए वो देने पड़ता है। तो मैं हिसाब किताब लगा रहा था कि 28,000 में बचते कितने होंगे, वो अपने मेरी पॉकेट मनी से भी कम लेते होंगे। आज ये बातें समझ आती हैं, लेकिन तब मैं 3200 रुपए में कंप्लीट करता था। मेरे पापा की हालात मेरे को मालूम थे कि वो किस तरीके से इतनी अच्छी पोस्ट को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर भी वो बहुत स्ट्रगल झेल रहे हैं, और मेरी जिंदगी भी अभी तक वैसे सेटल नहीं हुई है। मैं बहुत सारे रीजन जानता था। +2 में जो मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे, कोई IIT में चला गया, कोई NDA में चला गया, और मैं यहाँ डोनेशन पे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो बहुत सारी वीकनेस जो मेरे दोस्तों को नहीं पता थी वो मुझे पता थी। और जब मेरे अंदर ये 4 लाख रुपए सुने थे तो मेरे अंदर एक स्पिरिट आई थी, यस अब मौका आया है कि मैं दोबारा कम बैक कर सकता हूँ, और उनको 5 साल के बाद जाके दिखा सकता हूँ कि मैं फिर भी पीछे रहने के बाद भी आगे आ गया था। पूरा सन्नी देओल बन गया था, मैं मुक्के मारता था मैं दीवारों पे, यार फोड़ देंगे फोड़ देंगे फोड़ देंगे। लेकिन अपने अंदर ही एक डरपोक इंसान बैठा होता है, उसने मेरे को आधे घंटे के अंदर अंदर डराना शुरू कर दिया, अरे तेरे बस का नहीं है, ये तो बता के चला गया, तेरे से कुछ नहीं होने जाना है। मैंने खुद से जब अपने आप को जज करना शुरू किया कि मेरा पास्ट इतना डरावना है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, आज तक मैंने जिंदगी में रुपया नहीं कमाया, तो मुझे खुद से डर लगने लग गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये। और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 15,000 रुपया अगर इतनी मोटी बात करके गया है तो 15,000 रुपये भी अगर मैं 15 महीने के अंदर अपने लिए एक एक्स्ट्रा कमाने के लिए सोच लूं तो शायद मेरी उस 35,000 के साथ 15,000 रुपीज 50,000 तक ले जाएगी, और 10 साल के बाद तो कम से कम मैं अपने दोस्तों से एक ऊबर के लैब। तो शुरुआत बहुत छोटे से शुरू की थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। 16 डेज हो गए थे मेरे को इस बिजनेस के अंदर, और मैंने लगभग 20 से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दे दी थी। मैंने जब अपने पापा से पॉकेट मनी मंगाई थी तो मैंने इस बिजनेस के लिए अपने आप को तो ध्यान में रखा ही था कि मेरी औकात मेरे पापा के सामने एक फेलवर की तरह है। तो मेरे पापा जी इस बात पे तो विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे को बस में बिठाते वक्त उन्होंने बोला था कि बेटे नौकरी मैं लगवाऊंगा, तो मुझे पता था कि मेरे पापा का मुझ पे कितना यकीन है कि अगर मैं कोई मोटी बात बोलूंगा कि मैंने बिजनेस करना है। तो मैंने अपने फादर जी से 6 महीने के लिए मैंने कोर्स के लिए पैसे मांगे कि पापा जी 3 महीने के पैसे आप इकट्ठे भेज दीजिए मेरी पॉकेट मनी के, मेरे को एक कोर्स करना है। 6 महीने के बाद मेरे को एक इंटर्नशिप के थ्रू 3,000-4,000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा वो कंपनी पे करना शुरू कर देगी। मेरे पापा जी को पहली बार मेरे अंदर पुत्र नजर आया होगा कि मतलब की बात बोल रहा है, पढ़ने लायक बात बोल रहा है। तो मेरे पापा जी ने इमीडिएटली ड्राफ्ट बनाया और मैंने उसमें से 7,163 रुपीज 10,000 रुपए में मैंने 7,163 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट बना के नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को लॉग इन किया, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू जानता था कि बाकी लोगों के लिए पता नहीं क्या होगी लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ प्रूव करना है, मैं अपनी वीकनेस जानता हूं। वहां से मेरी शुरुआत होती है कि मैं अपने पापा से वो 3 महीने की पॉकेट मनी लेता हूं, काम करना शुरू करता हूं। 16 दिन के अंदर 16 प्रेजेंटेशन देता हूं। ना मेरे को अनुभव था, ना मेरे को ज्ञान था, मैं अच्छा बोल सकता था, ना मेरे को समझाना आ रहा था, और मेरे जैसे आदमी को फिर किसने ज्वाइन करना था। लेकिन फिर भी मेरा पेशेंस काम आया और 16 डेज के बाद मेरे पास रिजल्ट्स आने शुरू हुए।
पहला, दूसरा, तीसरा रिजल्ट आया, बहुत खुशी मिलने लगी, नहीं मेरी कोई वर्थ है, मैं कुछ कर सकता हूं, और मेरे को कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए। बहुत मजा आने लगा। सिर्फ और सिर्फ पहली अचीवमेंट के तौर पे सेल्फ अर्न्ड अचीवमेंट मेरी 1500 रुपए का मोटरोला का नीली लाइट वाला सेट था, जिसको मैंने खरीद के सेकंड हैंड सेट लिया था, और रात को कम से कम अपने तकिए के नीचे से कोई 5 बार देखा था। ओ माय गॉड, ये मेरी अचीवमेंट है, मैंने 1500 रुपए का सेट लिया है। और मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। एक दोस्त था मेरा दिल्ली से, नितिन ग्रोवर, उसके पास उस टाइम पे एक गेम वाला फोन था 7000 का, 8000 का, और वो मेरी बहुत उतारता था, और मैं उस 1500 रुपए के सेट के साथ ही उसके उतारने चला गया अगले दिन कैंटीन के अंदर। बहुत कलरफुल है, अरे तेरा तो बहुत अच्छा चलता है, इसमें स्क्रीन अच्छी है, गेम खेलने वाले हैं, मेरा तो 1500 रुपए का है यार, सेकंड हैंड है यार। लेकिन मैंने उसको ये रियलाइज करवाया कि तेरा तो पापे ना दिलाया होगा यार, मेरा तो खुद कमा के लिया है, सेल्फ फंड है, इसलिए थोड़ा 1500 रुपए में गुजारा कर। उसके हालात देखने वाले थे, बहुत मजा आने लगा। पहली अचीवमेंट मेरी थी 1500 रुपया। दूसरा, मैंने उस टाइम पे कसम खाई थी कि मैं अपनी बाइक लूंगा। मेरे पापा जी ने मुझे रॉयल इनफील्ड दिलाई थी, बहुत बेइज्जतियों की बात, लेकिन फिर भी मेरे को फील नहीं हुई थी उस टाइम पे, बाद में जाके फील हुई। मेरे को एक कसम थी कि मैं अपने लिए बाइक लूंगा, क्योंकि मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, और मैंने एक कसम खाई थी कि मैं मई महीने में 2 मई को मैं बर्थडे और मैं अपनी बाइक लूंगा। 11 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था, और 4 महीने के अंदर अंदर सेल्फ फंड बाइक कर लिया था। अपने अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त आ गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि 15,000 रुपए कमाने, और 3 महीने में मैंने 37,000 रुपए कमा लिए थे। मजा ये आने लगा कि जिस 15,000 रुपीज के लिए मैं सोच रहा था कि 15 महीने के बाद कमाएंगे, वो कमाना शुरू कर दिए थे। बहुत मजा आ रहा था कि इसके बाद मैंने एक छोटा सा सेट लिया था, उसने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया था। अकेला इंसान चल रहा था, 49 लोगों की टीम हो गई थी, तो मैंने सोचा भी हम बहुत आगे निकल आए हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर इंसान को अपने उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना है बस, अगर वो कर ले, और इससे बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है जो उस कॉन्फिडेंस को वापस ला सकती है। और मैंने 3 महीने के अंदर अंदर अपना कॉन्फिडेंस वापस लाया। बहुत लोगों ने मजाक बनाया, बनाना भी चाहिए था क्योंकि मैंने उससे पहले कुछ प्रूव नहीं किया था। ये इंडस्ट्री भी मेरे लिए नई थी, स्टूडेंट्स के लिए नई थी। मैंने अपनी लाइफ में उनके लिए कुछ प्रूव करके बताया नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था। तो बहुत सारे लोग इस बात पे इंतजार कर रहे थे कि तू बेटे थोड़े दिनों में तो हमारे साथ ही बैठेगा, हमारे साथ ही शामिल होगा। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने लिए सबसे दूसरा गिफ्ट 51,000 रुपए की उस टाइम की एक अच्छी बाइक यामा फेजर ली थी। और मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसके पास उस टाइम की करिश्मा बाइक होती थी, और मेरे को लगता था सही टाइम है इसकी बेइज्जती कर। 51,000 वाला 1.5 लाख रुपए वाली बाइक का मजाक बनाने जाता है कैंटीन के अंदर, और ये बोलता है ये तो तेरे पापा ने दिलाई होगी। पापा से तो कुछ भी लिया जा सकता है जिद करके, लेकिन अपनी भगवान से जिद करके मैंने 51,000 रुपए की सेल्फ फंड बाइक ली है। वो खुशी एक अलग होती थी। और ये 2 चीजें अचीव करने के बाद फिर मैंने सोचा हम तो फोड़ने का टाइम आ गया। अब इस इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ करके बताऊंगा कि जिसने मेरे को देख लिया है वो अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कम से कम 3 साल सोचे कि ये आदमी बहुत खतरनाक था, इसने मतलब रात को नींद भी उठे ना तो ये बोले कि ये आदमी था, इसने मतलब सब कुछ बोल के पूरा किया है। और मैंने उस टाइम पे कसम खाई थी बाइक लेती वक्त कि ये इंजीनियर बाइक के ऊपर इंजीनियर बनने के बाद बाइक पे नहीं घूमेगा, इसका खुद का 4 व्हीलर होगा। इतना कॉन्फिडेंस कि मेरे पापा की 28 ईयर की जॉब एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होने के बाद भी हम मारुति 800 नहीं ले पाए थे। और मैं बोल रहा था कि मैं सिर्फ 14 महीने में एक इंडिका V2 4.5 लाख रुपए की ले लूंगा। और यस, 49 की टीम 86 की होगी। 6 लोगों ने मेरे कॉलेज में 6 जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास में पढ़ते थे उनके पास अपनी सेल्फ फंड बाइक आ गई। तो मैंने सोचा एक लूजर अगर फैसला करे तो बहुत सारे लोग फायदा ले सकते हैं। ये मेरे पहले साल की जर्नी है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे अंदर आग बन के बहक रही थी। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए थे। बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझसे उम्मीद लगा रखी थी कि ये आदमी मेरी बेटी की शादी में पानी देने के काम आएगा, पानी पहुंचाने के काम आएगा। तो बहुत सारी चीजें जो अंदर मेरे को पता थी कि कितने सारे कारण हैं कि मेरे को कामयाब होना है। बाय द ब्लेसिंग मैं अपनी लगभग 11 महीने, मैंने लगभग 14 महीने का टारगेट लिया था, 15 महीने का टारगेट लिया था कि मैं गाड़ी लूंगा इंडिका V2 4.5 लाख रुपए की लाल कलर की। लेकिन 8 सेमेस्टर का पहला दिन देने जा रहा था तो मैं 8.5 लाख रुपए की फोर्ड फिएस्टा से जा रहा था और ड्राइवर चला रहा था क्योंकि मेरे को चलाना नहीं आती थी। मुझे बहुत मजा आया। जो गार्ड मेरे को रोज गालियां निकालता था और रोज अजीब अजीब तरीके की बातें करता था, जब ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा था और मैं पिछले वाली सीट पे बैठा हुआ था,
वो सल्यूट मारता है और सल्यूट मारने के बाद क्या देखता है कि ये तो वो आदमी है जिसको मैं रोज गालियां निकालता था। और बहुत मजा आता है। जिस प्रोफेसर ने मेरे साथ थोड़ी सी खुंदक पाली थी, मैंने उसी प्रोफेसर को पिछली वाली सीट पे बिठाया और ड्राइवर को बोला कि तब तक चलाते रहना जब तक मैं नहीं बोलूं। तो हमने कॉलेज के 4 चक्कर काटे और मैंने बोला सर अब इंजीनियरिंग सिर्फ बंगले के बाहर बोर्ड के तौर पे आएगी कि ये नेम प्लेट के तौर पे आएगी कि ER लिखने के काम आएगी। अब इस इंजीनियरिंग में से रुपया नहीं कमाऊंगा मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूँ। बहुत मजा आया। 6 महीने कॉलेज में पूरी तफरी मारी, पूरी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय किया। 8 सेमेस्टर के अंदर पूरी जिंदगी का स्टूडेंट लाइफ का जो क्रेज होता है ना, स्टूडेंट ऑफ ईयर, वो जो सुनी देखी होगी फिल्म में, वो सारी उस साल में की, उस 6 महीने में की, क्योंकि पैसा बहुत आता था। जो फिगर मेरी उस सीनियर अपलाइन ने बताई थी कि 1 हफ्ते में 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है, मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करते करते 1,13,000 रुपया, जब मेरी 8 सेमेस्टर की इनकम, जब मैं 8 सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहा था, अपनी गाड़ी के अंदर 6 गाड़ियां और चल रही थी मेरे दोस्तों की जो उस कॉलेज से निकली थी अपने सेंटर पे जाने के लिए, उसके साथ मेरी इनकम उस एग्जाम देते देते की इंजीनियरिंग खत्म होते होते 1,13,000 रुपया हो गई थी। और वो फिगर भी, वो माइंड से बैरियर भी टूट गया था कि इसको भी किया जा सकता है। पहले साल की इनकम सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपया थी, लेकिन अगले 13 महीने की इनकम 31 लाख क्रॉस कर गई थी। जब मैं फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आया तो टोटल 2 साल की इनकम, अब मैं इस पोटेंशियल को जान गया था। बहुत मजा आ रहा था काम करने के लिए। शुरुआत में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे 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 चलने के बाद कॉन्फिडेंस वापस आया। मैं आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर बोलता हूं कि हर एक इंसान के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल डीएनए पैदा होते आ जाता है। अगर वो पैदा होते रोया है, अगर वो मम्मी पापा से पता कर ले तो वो एंटरप्रेन्योर है क्योंकि उसको पेन होता है, उसके इमोशन है, वो किसी तरीके से चिल्ला सकता है, वो अपना पेन एक्सप्रेस कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योर है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो एक इंसान को अंदर चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, वो पैदा होते ही उसके पास है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, हमारा बाप इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बाप ने मेरी बहुत ऐसी तैसी की थी, अब मेरे को भी एक आदमी चाहिए जिसका मैंने कॉन्फिडेंस गिराना है। तो इतना समझदार इंसान सामने मिल जाता है। हमारे घर में आसपास रिश्तेदार सारे के सारे उस एंटरप्रेन्योरल डीएनए को खत्म करना शुरू कर देते हैं। अगर आप बचपन में अपने छोटे छोटे टॉयज के लिए अगर आप लेट गए हो, पापा से जिद्दी, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा पहला पैरामीटर है कि जिद्दी होना चाहिए इंसान। तो आप में वो जिद करने की कैपेबिलिटी होगी कि आपने किसी टाइम पे टॉयज के लिए, किसी चीज के लिए आप जमीन पे लेट गए होंगे, मेरे को चाहिए, वो था। लेकिन धीरे धीरे वो जिद्दीपन मम्मी के सामने रह गया सिर्फ सब्जी मांगने के लिए। अब बाहर की दुनिया में वो जिद्दीपन काम नहीं आ रहा है, आपको उस जिद्दीपन को दोबारा निकालना पड़ेगा। ये बेसिक क्वालिटीज है, ये कोई खराब चीजें नहीं है, बस इसको दिशा मिलनी चाहिए थी। आप वाइल्ड थे, आप नोटी थे, उद्दंड थे, ठीक, और क्या कह सकता हूं उसको मैं, एरोगेंट थे, जरूरी हिस्से हैं, बस इसको एक पॉजिटिव मीनिंग देने की जरूरत है। यही एंटरप्रेन्योरशिप हर आदमी में मौजूद है, लेकिन उसको 15-20 साल के अंदर एक अच्छा नौकरी करने वाला तैयार कर दिया जाता है। आपको इस बिजनेस में आने के बाद ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसा स्पेस मिलेगा कि इन क्वालिटीज को आप दोबारा क्रिएट कर पाओ, दोबारा बाहर निकाल पाओ, और वही पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाने के बाद जब आप यूज करोगे तो आपको मालूम आएगा इंजीनियरिंग या फिर बाकी की पढ़ाई काम नहीं आती। जो पैदा होते ही हमारे अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था एक तरीके का कि जिसकी वजह से बड़ा बनना होता है, वो पहले से मौजूद था हमारे अंदर। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आप नोटी रहें, सनकी रहें, एक धुनी बन जाएं अपनी जिंदगी के अंदर, और ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है अगर आप दोबारा से इन चीजों को पालें, और पैसा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा अगर आप इनके बारे में बहुत खुल के अपने आप को जीना शुरू करेंगे। और मेरे को भी आने के बाद इस बिजनेस के अंदर यही मिला। मेरे 3 दोस्त बहुत आगे निकल गए थे, 4-4 साल आगे निकल गए थे मेरी जिंदगी में। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को बहुत इस तरीके से मान लिया था कि अगर इसका बाप इसका साथ नहीं देता तो ये कुछ नहीं कर सकता था, मैं स्कूल का मास्टर तक नहीं बन सकता था। तो मेरे हालात उस टाइम पे, अपॉर्चुनिटी, मुझे क्लियर थे कि मैं क्या हूं। दुनिया तो मेरे बारे में वो चीजें नहीं जानती, लेकिन मैंने अपने रीजन के साथ ज्वाइन किया और मैंने उन रीजंस को हमेशा आग देता रहा और बड़ा बनने की कोशिश करता रहा। पहली मेरी अचीवमेंट थी कि मैं 1500 रुपए के मोटरोला सेट्स के साथ शुरू किया था। जिस दिन मेरे पापा के वो 10,000 रुपीज आए थे, मैंने महीने के बाद, जब अगले महीने की पॉकेट मनी की बात आई थी, मैंने अपने पापा को फोन नहीं किया। पापा भी खुश थे कि इस महीने से पैसे नहीं मांगे हैं। दूसरे महीने जब मैंने फोन नहीं किया तो उनको चिंता सताने लगी कि ऐसा नहीं है कि अपन एक प्रॉमिस कर दिया इसकी वजह से
ये मांगने बंद कर दे, तो उन्होंने जानबूझ के, वो बेटे कोई बात नहीं यार, 3 महीने के पैसे लिए थे, हमें पता खर्च हो गए होंगे, तुझे भेज देते हैं और पैसे। और तब मेरा वर्ड था उस टाइम पे, ये गिफ्ट था कि आज के बाद पापा जी आपको उस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे नहीं भेजने, आज के बाद इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसे जाएंगे। और तब से लेके वो लास्ट ट्रांजेक्शन था 10,000 का, कि उसके साथ मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू की थी स्टूडेंट के तौर पे। बहुत मजा आता है। एक दिन मेरे पापा जी को फोन आता है टैक्स डिपार्टमेंट से कि सर आपके पास जितनी आपकी सैलरी है उससे डबल महीने की सैलरी, आपके पास पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके इसके बारे में ब्रीफ करना पड़ेगा कि ये क्यों आ रहे हैं। तो मेरा चेक उस टाइम पे 1 लाख रुपए का बनता था और मेरे पापा जी का चेक 50,000 रुपए का बनता था। तो मेरे पापा जी को इनकम टैक्स वाले ले गए कि ये क्या है। तो मेरे पापा जी ने बोला मैंने तो एक कंप्यूटर कोर्स खरीदा था और मैंने 2-4 लोगों को बताया, तो पता नहीं फिर उसके बाद पैसे आने शुरू हो गया, मैं क्या करूं जब पैसे आ रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे पापा जी बहुत हैवीली पेनल्टी दी थी। तो मेरे पापा जी के पास पता नहीं कितने पैसे, मतलब मेरे ख्याल से 10-12 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया था उस टाइम के अंदर। बहुत मजा आता है कि वो चीजें वापस कर दी गई थी अपनी शादी से पहले। दुनिया घूमे, बहुत कुछ ऐसा किया जो क्लियर था। एक गाड़ी की पहली बड़ी अचीवमेंट थी जो बैरियर तोड़ने वाली थी, जो पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाने वाली थी कि एक इंसान 11 महीने 20 दिन के अंदर 8.5 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता है। वो मेरी जिंदगी का बैरियर तोड़ने लगी। मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, तब तक मेरे 6 दोस्तों ने अपनी 9-9 लाख रुपए की गाड़ियां ले ली थी। मेरी इंजीनियरिंग के 8वें महीने मेरे को मेरे पापा जी बताते हैं कि बेटे तेरे लिए लड़की देखी है, लड़की वाले मिलना चाहते हैं। तो मैं शोरूम जाता हूँ और 19 लाख रुपए की सोनाटा एम्बेरा खरीद के लाता हूँ, ये सोच के हिमाचल की सबसे लंबी गाड़ी अपने पास होनी चाहिए। ड्राइवर को व्हाइट कलर की वर्दी से लाता हूँ, लड़की देखने जा रहे हैं तो इस तरीके से आगे मैं बैठता हूँ, पीछे पापा मम्मी बैठते। बहुत शानदार, ऐसा लगता था कि अमीर तो नहीं पैदा हुए थे लेकिन खुद के दम पे ऐसा कर दिया है जो फिल्मों में देखा था। तो बहुत मजा आया जब लड़की देखने गए। तो मेरे को नहीं लगता कोई लड़की ऐसा मना कर देगी कि 8 महीने पहले इसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई और अभी 19 लाख की गाड़ी में घूम रहा है तो उसको मना किया जा सकता है। तो भगवान जी का बहुत आशीर्वाद था। हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद घर में गुड न्यूज आई, तो मैंने अपने वाइफ को एक स्विफ्ट डिजायर गिफ्ट की। थोड़ा सा और आगे भगवान जी का आशीर्वाद हुआ कि एक दूसरी गुड न्यूज आने वाली थी, तो मैंने अपने लिए स्कोडा लोरा फुली ऑटोमेटिकली, बहुत मेहनत की। आप सिर्फ इफेक्ट में मत जाइए कि ऐसा कुछ हुआ, इसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, कुछ ना कुछ पे किया, लेकिन अच्छी बात है कुछ मिला तो सही। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मिलता ही कुछ नहीं है उनको। मैं चंडीगढ़ से आता था अपने दिल्ली मीटिंग करने के लिए, तो मैं 160-180 की स्पीड से चलता था और सोनीपत के पास इंटरसेप्टर खड़े होते थे। मैं अपने उस सारे खर्चे के साथ 500 रुपए अलग से रख लेता था कि स्पीड से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे 500 रुपए का फाइन देना पड़े। बल्कि अपनी जिंदगी को जीने का वो नशा खत्म नहीं होने दिया हमने, कि अपनी जो चीजें सेक्रीफाइस की थी। मजा आता था, पंजाबी गाने लगते थे 180 की स्पीड से, गाने 180 की स्पीड से गाड़ी चल रखी होती थी और पूरी तफरी मारी थी और याद करते थे कि यार कोई बात नहीं, पसीना बहा था, स्ट्रगल कहा था, लेकिन जो एक्सीलेटर पे पैर पड़ता है ऑटोमेटिक गाड़ी पे, वो भी तो इसी वजह से मिला है जाके। भगवान जी ने बहुत, मतलब सब कुछ, 50 बार भगवान जी जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अपने अंदर 22 साल तो कुछ समझ आया नहीं कि है क्या, सब कुछ आशीर्वाद ही है। तो भगवान जी ने मौका दिया, घर मैं आगे बढ़ा। तो स्कोडा लोरा के बाद मैंने एक और गाड़ी ली, अपने पापा जी को एक सेंट्रो गिफ्ट की। बहुत मजेदार किस्से हैं, अगर कभी मौका लगा लंबा सुनाने का, कि मेरे पापा जी ने मुझे रॉयल इनफील्ड सताते दी थी। मैंने बैक लाइट पे लिखवाया था डैड्स गिफ्ट और मेरे पापा जी ने ब्लेड से उखाड़ दिया था। बोला कोई डैड्स गिफ्ट नहीं है, मेरा खून जलता है इसको देखते हुए। और फिर मेरे को उस दिन की याद थी, और जिस दिन अपनी स्टूडेंट लाइफ में कमा रहा था और मैंने पापा जी को बुलाया, 20 अगस्त का दिन था, शोरूम ले गया और मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी 28 साल की नौकरी होगी और मुझे पता है कि आपके अंदर एक ख्वाहिश दबती है कि अपनी गाड़ी होनी चाहिए, तो आज जिस गाड़ी पे आप हाथ रखोगे आज आपको बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। और मुझे मजा आता है कि उस टाइम का बदला मैंने निकाल लिया, जो उन्होंने मेरे को रॉयल एनफील्ड पे डैड्स गिफ्ट निकालते हुए देखा था, उन्होंने निकाला था, और मेरे पापा जी ने हिमाचल पहुंच के सबसे पहला काम कराया, रियर विंडशील्ड पे लिखाया सन्स गिफ्ट। और मैं सोचता था कि ये असली नाम था जिसको मैंने पाने के लिए बहुत काम। आज बहुत आशीर्वाद के साथ BMW चलाता हूँ। एक घर मैंने चंडीगढ़ के अंदर लिया 1 करोड़ 5 लाख रुपए का, एक घर मैंने जयपुर में लिया 50 लाख रुपए का, एक घर मैं और बना रहा हूँ अपने होम टाउन के अंदर, बहुत जबरदस्त वाला। जीवन में पैसा कमाना तो ऐसा हो गया कि कभी भी कमा लेंगे, अब इतना विश्वास आ गया है। लेकिन एक राइट ऑर्गेनाइजेशन मिली जिसने सोचने की हिम्मत दी कि कुछ भी किया जा सकता है। मैंने 2007 में एक सपना लिया था कि मैं 2015 का सूरज अस्त नहीं होने दूंगा और BMW चलाऊंगा।
एक जेन तक लेने की औकात नहीं थी, तब भी ये सपना लिया था कि मैं एक BMW लूंगा, क्योंकि शाहपुरा से लेके जयपुर तक मेरे को एक BMW वाले ने लिफ्ट दी थी और मैंने ये सोचा था कि ऐसा हवाई जहाज जमीन पे भी चलता है क्या और मैंने कसम खाई थी कि ये जरूर जिंदगी में अपने पास होगा। और 2015 के अंदर ये सूरज अस्त होने से लगभग 4 महीने पहले अक्टूबर 2015 में मेरे घर के सामने BMW खड़ी हुई थी। मैंने कसम खाई थी कि 2015 के अंदर अपना बहुत शानदार घर बनाऊंगा। वो 2015 के अंदर मैंने उस घर में अपने लिए गृह प्रवेश कर लिया था। मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो औकात से ज्यादा चाहा और जो माना वो अपनी डेट से पहले पूरा किया। मुझे याद है मैंने 2015 में जब उस कंपनी के अंदर सिर्फ 4 लाख रुपए का पे आउट कमा सकते थे, 5 लाख का पे आउट, तब मैंने बोला था कि 2025 का सूरज अस्त नहीं होगा और मेरी महीने की इनकम 80 लाख रुपया होगी और मेरे पास चॉपर होगा और शाम के 5 बजे अपने स्विमिंग पूल पे पास बैठ के हाथ में बियर का मग लेके अपने चॉपर की तरफ देख रहा हूँ और अपने आप को शाबाशी दे रहा हूँ, देख बेटे तू कहाँ से चला था और कहाँ पहुंच गया। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 2025 से पहले जरूर करूंगा, क्योंकि ये तो वेस्टीज है। यहाँ पे 2009 में जो 15,000 रुपए की नौकरी मांगने आता है, अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा सकता है तो हमने तो पहले 7 करोड़ रुपए कमाने के साथ शुरुआत की है। हम 2025 में इससे भी ज्यादा शुरुआत करके बताएंगे। तो ये एक छोटी सी इमेजिनेशन और वेस्टीज अपने आप में कभी सोचने का मौका ही नहीं देती कि छोटा सोच पाऊं, और बहुत मजा आता है ऐसी दोस्तों के साथ। विपिन जी हो गए, सार्थक जी हो गए, दिलीप जी हो गए, राहुल जी हो गए, ऐसे दीपेश जी हो गए, बहुत सारे, अपर्णा जी, आकृति जी, नितिन यादव जी, ऐसे बहुत सारे। और ऐसे 2 महागुरु मिले जिन्होंने असली में मेरे को धन्य कर दिया है। अगर आज उनका साथ मिला हुआ तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि रात को नींद घोड़े बेच के आती है। ही इज नन अदर देन हमारे बेस्ट टेक्निकल गुरु मिस्टर गुलशन गुलाटी जी, और जो एक अपने आप में ब्रांड फेस है, पैदा ही ब्रांड हुए हैं, मिस्टर गौरव अग्रवाल जी जो बहुत छोटे से ही ऐसे थे। तो ऐसी बहुत सुंदर टीम मिली। राव त्रिपाठी जी, बहुत बड़ी टीम है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। टोटल मिला के अभी तक इन 13-14 वर्षों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना दिया। मैं गाड़ियां गिन रहा था किसी टाइम पे, तो 1100-1200 गाड़ियां अब तक टोटल एक लूजर ने एक फैसला लिया तो पता नहीं कितने लोगों के घर तक पहुंचाने का जरिया बन गया। ये भी भगवान जी का आशीर्वाद बना। करोड़पति कितने नेटवर्क के अंदर बन गए, ये भी भगवान जी के आशीर्वाद से। आज मजा आता है जब विपिन जी डालते हैं, वकील जी डालते हैं, ये सारे डालते हैं कि मेरा ये 2 करोड़ पूरा होने वाला है, 1 करोड़ पूरा होने वाला है, तो बहुत शानदार मौका लगता है। और थैंक यू करूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट को जिन्होंने ये भरोसा हम पे दिखाया और हम बहुत बड़ी लीड, हम सेंसेशन है। मतलब कि आज हम 9 महीने के अंदर मैं क्राउन डायरेक्टर हो गया, ऐसे हमारे बीच में ऐसे 7 से ज्यादा डायमंड्स हैं। हमने बहुत जबरदस्त ग्रोथ के साथ काम करना शुरू किया है। अगले 10-15 दिन के अंदर मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 9 महीने में 8 टैग पूरे करना, अपने आप के अंदर मेरे को बूढ़ा ना हुआ हूं ऐसा शेर हूं ये दर्शाने के लिए काफी है। और अभी शुरुआत करना बाकी है, अभी गर्म हो रहे हैं और गर्म होने के बाद टीम एलीट या ये जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही है, ये अपने आप में वो 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ देगी जो वेस्टीज ने अभी तक बनाए होंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। और थैंक यू गौरव अग्रवाल सर, और आपने मौका दिया मेरे को यहाँ पे बोलने का। और थैंक यू सो मच सर। सर आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो हर बार आपको देखता हूँ और मेरे को ये लगता है कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को सिर्फ ये डिस्कवर कर पाना कि उनका पैशन क्या है। वो लोग चीजें पसंद कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं। कि लोगों को अच्छा लगता है कि इस एमएनसी में जॉब होनी चाहिए, या वो वाला ब्रांड का टैग लगा होना चाहिए, या इस वाले ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, और लोग उसी को ही अपना पैशन समझने लग जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी इंसान के लिए अपना पैशन डिस्कवर कर पाना। और मेरे को ये लगता है हर बारी, जितनी बारी आपसे मुलाकात हुई है मेरी जितने पिछले सालों के अंदर, मेरे को एक इंसान ऐसा दिखाई देता है जिसको अपना पैशन मालूम है। ठीक है ना, जिसको ये बात बोलते हुए संकोच नहीं होता कि इंजीनियरिंग के अंदर तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे पहुंचेंगे, पर ये समझ में आ गया था कि अगर ये वाला एक मौका है जो पैसे दे देगा तो पैसे कमाए जाए। लोग शर्माते रह जाते हैं ये वाली बात बोलने के लिए, पर जिस कॉन्फिडेंस है और जिस कन्विक्शन के साथ आप इसे पुटअप करते हो कि कमाया जा सकता है और मैं कमाऊंगा। और मेरे को लगता है सर हमारी पूरी टीम एलीट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि हम सोच भी सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हम वो बादल नहीं है जो गरजते अलग हैं और बरसते कोई और हैं, हम वही सारे बादल हैं नितिन जी जो गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। थैंक यू सो मच नितिन जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे हैं। मैं स्पेशली थैंक यू एक और करना चाहूंगा गुलशन गुलाटी जी को, जिन्होंने हम सबको बहुत सारी अपनी नॉलेजेस और ट्रेनिंग्स
के थ्रू रिफाइन करने की कोशिश करिए, सिखाने की कोशिश करिए। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हर रोज उनसे बात कर पाता हूँ, हर रोज उनसे सीख पाता हूँ। आज तो थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन मैं आपको जरूर उनसे अगले वीकेंड मिलवाने का प्रयत्न करूंगा। बीच हफ्ते में उनकी ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। आप सबसे सिर्फ मेरा पुनः यही वाला आग्रह, अगर कहीं ना कहीं कोई भी चिंगारी अंदर बाकी है तो उसको आग बनने दो, और उसको आग बनने के लिए सीखना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, एक्स्ट्रा पुश मारना भी जरूरी है, एक्स्ट्रा माइल जाना भी जरूरी है, हर प्रॉब्लम से निकलना भी जरूरी है, नई एक्सप्लोरेशन करना भी जरूरी है। बहुत सारी चीजें जरूरी हैं और वो कैपेबिलिटी है। मैंने एक छोटी सी स्टोरी से एंड करना चाहूंगा। भगवानों के बीच में कुछ असुर होते थे और कुछ देवता होते थे। सबके पास पावर्स होती थी। आपने अभी रामायण देखी है, एक तीर मारते थे वो 100 बन जाते थे, दूसरी तरफ से भी वो तीर मारता था 100 तीर बन जाते और सारे पॉइंट पे आके मिलते थे। एक दिन भगवानों ने सोचा कि ये सारी की सारी पावर्स को मिसयूज करा जा रहा है, क्योंकि पहले तो लोग अलग थे, उनमें से कुछ असुर बन गए जिन्होंने गलत के लिए यूज किया और कुछ अच्छे रह गए जो अच्छे के लिए यूज करते थे। उन्होंने बोला लेकिन पावर अगर किसी के भी पास होगी तो उसका मिसयूज होने की कैपेबिलिटी रहेगी, तो मेरे को सारी की सारी ये दिव्य शक्तियां हैं जो सबके पास है उन्हें छीन लेना चाहिए। उन्होंने छीनने के बाद सोचा कि इसे छुपाया कहां जाए, तो पहले निर्णय बना कि इसे नदी के समुद्र की गहराइयों में डाल दो। तो ये डर रहा कि समुद्र की गहराइयों तक इंसान पहुंच जाएगा। फिर ये हुआ कि बादलों के ऊपर ले जाओ, उन्होंने नहीं ये रॉकेट शॉकेट बनाएंगे, ये वहां पे भी पहुंच जाएंगे। रेगिस्तान में दबा दिया जाए, वो बोलते नहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट होगा उसमें निकल जाएगी, फिर मिल जाएगी। जिसको मिल जाएगी वो इसका मिसयूज कर सकता है, या मतलब सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। बट मैं ये चाहता हूं कि ये संभली रहे। बहुत सारा विचार करने के बाद कई देवताओं ने बहुत सारे आइडियाज दिए, सब रिजेक्ट होने के बाद फाइनली उनके दिमाग में स्ट्राइक करता है ब्रह्मा जी के, एक जगह है, एक इंसान कहीं पे भी पूरी दुनिया में छान लेगा लेकिन कभी उस जगह पे जाके अपनी पावर को खोजने की कोशिश नहीं करेगा। और उन्होंने क्या किया कि वो सारी की सारी ताकतें लेके उसी इंसान के अंदर डाल दी। अब हर इंसान किसी से भी जाके प्लीज कैन यू हेल्प मी, मेरा रेफरेंस यूज कर लोगे क्या, इस रेज्यूमे के लिए किसी का अप्रोच लगाई जा सके। मैं हर पॉसिबल कोशिश करता हूं कि मैं किसी और से मदद ले लूं, और कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं अपने आप से मदद मांगू। जिस दिन मैं मदद मांगने लग जाऊंगा बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे, बड़े बड़े काम हमने होते हुए देखे। सो वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेमिनार। Thank you all the participants, thank you all the guests who are come here for the very first time. आप आज ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देके अपना रजिस्ट्रेशन करें, आज से अपनी शुरुआत करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट संडे एट 5 PM। और मैं एंड करते हुए आपको एक वीडियो के साथ दोबारा छोड़ते हुए जाता हूं। ये मंजर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद 5 महीने के अंदर क्रिएट किया, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। अगर इसमें आप अपने आप को इस वाले दृश्य के अंदर देख पाते हो तो मैं यकीन दिलाता हूं आने वाले 5 महीने के अंदर इससे बड़ा मंजर आप में से एक एक इंसान अपने लिए क्रिएट कर पाएगा। ऑन दैट नोट, thank you very much, thank you Nitin ji, thank you Sarthak ji, thank you all my colleagues, thank you all my friends, thank you Gulshan ji, thank you the guests. I wish you all the very progress in whatever you do.